বিষয় হলাহলে দিবানিশি হিয়া জলে মন কভু সুখ নাহি পায়। হে বিষয় হলাহলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে মন কবু সুখ নাহি পায়। আশা পাশ শত শত ক্লেশ দেয় অভিরত প্রভু প্রভু রীতি উর্মির তাহে খেলা। আশা পাশ শত শত ক্লেশাদি অবিরত পরাব্রত উর্মিতা হে কাম ক্রোধ আদি ছয় বাত পীড়া দেহ ভয় অবসান হইল আসিবেলা। কাম আদি ছয়া মত পদে দয়াময় অবসান হইল আসিবে। জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতরিয়ালয় অবশেষ ফেলে সিন্ধু জলে। জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মরা পরে ত্রয় অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে। এহেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু কৃপা করি তোল মোরে বালে। এহন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু কৃপা করি তোল মোরে বালে। পতিত কিঙ্কর ধরি পদ পদ্ম ধুলি করি দেহ ভকতি বিনোদ আশ্রয়। পতিত কিঙ্কর ধরি পাদ পদ্ম ধুলি করি দেহ আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার পাশ বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময়। আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার পাশ বদ্ধ হইয়া আছে দয়াময়। অনাদি করম ফলে পরিভবার নব জলে তরিবারে না দেখি উপায়। অনাদি করম ফলে পরিবার নওয়া জলে তরিবার না দেখি উপায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ Krishna কৃষ্ণ Krishna Hare Hare হরে Hare রাম Rama Hare Rama
Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare. Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Hare Nitai Krishna, Gauranga Jai. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Jaya Nitai Nitai Gauranga. Gauranga, Jaya Gauranga Nitai Jaya Nitai Gauranga, Gauranga Gauranga Nitai Jaya Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Tai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gaur Jaya Jaya Nitai Nitai Gauranga Gauranga, Jaya Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Tai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Jaya Nitai Prabhupada. Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nitai Hare Krishna Gauranga, Prabhuji. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर. So we'll read the translation also. Nice bhajan. So let us read the translation. पहली लाइन मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा थोड़ा सा. I have fallen into the ocean of material existence as a result of my selfish activities, which are without beginning, and I see no means of deliverance from this great ocean of nuisance. Day and night, my heart burns from the poison of those worldly activities, and on account of this, my mind never finds any satisfaction or happiness. You want to read the second one? Yes, Prabhuji. Hundreds and thousands of desires like nooses around my neck constantly give me misery and trouble. In that great ocean of nescience play the waves of materialistic tendency. In this world there are many thieves and rogues, of whom six are prominent: lust, anger, greed, illusion, and madness. They are causing me great fear, and in this way my life is coming to an end. Third one. The two highway robbers' mental speculations and
the truth activity have मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा have cheated me and misled me and finally they are throwing me into the ocean of misery. बाबू जी एक बार पढ़ा नहीं, ज़्यादा दिख नहीं रहा है इस बाबू जी. At such a time as this, my dear Krishna, you can read from You here. are the only friend. You are the ocean of mercy. Mercy and Ocean. compassion. Mercy and compassion. I have no strength to get out of this ocean of nescience, so I pray to your lotus feet that you will be kind and by your strength uproot me from the from this ocean of suffering. Very nice. Last stanza. Accept this fallen servant and fix me as a particle of dust on your lotus feet. Kindly give me shelter through this Bhakti Vinod. O most merciful Lord, actually I am your eternal servant, but having forgotten this, I have become bound up in the network of mind. Bavar nave pade amar anadi karma phale. These are all bhajans of Gitavali by Bhaktivinoda ठाकुर, जिसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार हम इस एक सागर में, जिसको संसार सागर बोल रहे हैं, इसमें पड़े हुए हैं. क्यों पड़े हुए? बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फिश डिजायर्स. भगवान की इच्छा नहीं हम यहाँ पर है, ये मेरी डिजायर है, इसलिए हम इस संसार में. आई वॉन्ट टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, दैट इज व्हाई आई एम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. क्योंकि ये समुद्र ऐसा समुद्र है जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत है. दिन रात मैं जल रहा हूँ, इसलिए जल रहा हूँ. कल भी अंदरू बता रहे थे ना, विषया विषम पाशे, विषयों के विष से. विषय शब्द ही अर्थ बताता है. विषय विष ही है, विष ही है. विषय विषय विषय, ये विष है, ये पॉइजन है. विष है, विषय विषय, नाम ही क्यों दिया गया भगवान हमारे शास्त्रों ने, संस्कृत या हिंदी शब्द विषय. विषय विष ही है भाई. ये इस विषय को, इस विष को, इस जहर को पी पी करके मुझे बड़ा आनंद आने लग रहा है. संसार के विषयों को पी करके मेरा मन तो कभी संतुष्ट हो नहीं सकता. न तो कोई सुख पा सकता हूँ, न तो कुछ इसमें सुख की अनुभूति हो सकती है. परंतु जो मायाग्रस्त जीव है, जिस प्रकार एक शराबी नाली में पड़ा, उसको कुछ नहीं समझ आता वो क्या करता है, पर मायाग्रस्त जीवों को लगता है हम आनंद ले रहे हैं. परंतु भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर उन व्यक्तियों की या उन साधकों की अवस्था को वर्णन कर रहे हैं जो कम से कम यहाँ पर इस बात को समझ गए हैं कि मैं इस विष को पी रहा हूँ और आनंद की अनुभूति मेरे अंदर नहीं हो रही है. किस प्रकार के विषय, हजारों हजारों डिजायर्स. जैसे हमने परसों भी, पिछली बार भी माधुर्य कादम्बरी ने पढ़ा, हमारे अलग अलग शरीर क्यों निर्माण हो रहे हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग सो मेनी बॉडीज? व्हाट इज द कोर रीजन? क्यों निर्माण हो रहे हैं हमारे इतने सारे शरीर? हम इतने सारे ब्रह्मांड में बार बार शरीर जन्म क्यों ले रहे हैं? व्हाट इज द कॉज? व्हाट इज द मेन रीजन? देयर आर टू रीजंस. इच्छाएं प्रभु जी, हमारे डिजायर, और दूसरा वो जो बीज रूपी पाप है, जो हमारे अप्रारब्ध कर्म है. बीज रूपी पाप तो डिजायर ही हो गए, हमारे वासनाएं हो गई. और जो कर्म है, हमारे कर्मों के कारण हमको बार बार इस संसार में आना पड़ रहा है. और हमारे डिजायर, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, वो बीज, पाप बीज जो है, वासना रूपी, द डिजायर टू एंजॉय, द डिजायर टू हैव समथिंग मोर, द डिजायर टू हैव अ डिफरेंट थिंग टू एंजॉय, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग next birth for us. Not only one birth, millions of births. And why it is creating? Just desire होने से क्या हमको अगला जन्म मिलेगा? मेरा डिजायर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, अगले जन्म मैं बिल गेट बन जाऊं, तो क्या मैं बन जाऊंगा खाली डिजायर करने से? पॉसिबल है? नहीं प्रभु जी. फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पुण्य कर्म होना चाहिए प्रभु जी. उसके लिए कर्म चाहिए साथ, सेम प्रकार का. तो इसलिए कहा गया हजारों हजारों, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड डिजायर्स लाइक नूजेस अराउंड माय नेक, मेरे गले में फांस बांध दी गई है.
जैसे गले में डालते हैं ना फांस घोड़े को या किसी को जो कंट्रोल में नहीं आता है, नाक में डालते हैं ना पकड़ने के लिए, विशेषकर घोड़े को। कॉन्स्टेंटली गिविंग मी मिजरी एंड ट्रबल। क्या आनंद आता है घोड़े को नाक में और रस्सी डाल करके उसको पकड़ने के लिए? नहीं। और बार बार इस संसार, भौतिक संसार में वो गिर रहा है। इन दिस वर्ल्ड देयर आर थीव्स एंड रोग्स। चारों ओर केवल चोर, डाकू, लुटेरे हैं, और बाहर नहीं है, वो मेरे शरीर के अंदर ही बैठे हुए हैं। काम, उसमें से स्पेशल 6 चोर है जो मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं। मेरी काम, मेरा लस्ट, मेरा संसार के भोगने की इच्छा, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, माया, इल्यूजन और मैडनेस। मैडनेस इज नथिंग बट जिसको मद हो जाता है। मद बोलते हैं नाउ आई हैव गॉट दिस, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग। इसका मद है, मैं बहुत जानता हूं, ज्ञान इसका मद। कुछ भी मद हो सकता है, किसी प्रकार का भी मद हो सकता है। मैडनेस या दंभ या कपट, या दंभ इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ओनली कोई शराब पी के तभी वो शराब में मत रहता है, अभी मद हो गया है शराब पी करके, सिगरेट पी के, ड्रग्स पी के। नहीं, मेन मद जो हमारा है वो हमारा खुद का अहंकार जो हमारा है, वही मेन मद का कारण है कि मैं हूं कुछ, मेरी कुछ औकात ही नहीं। एक शरीर का पुर्जा इधर उधर हो गया ना, आदमी को सब कुछ पता लग जाता है। मैं पिछले हफ्ते भर से रोज कमल प्रभु को सुबह शाम हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, वो मेडिसिन लगाने के लिए, वो सलाइन और एंटीबायोटिक के लिए। कैसे कैसे लोग आते हैं। परसों ही मैं देखा, एकदम वो में सलाइन चढ़ रही थी, एक औरत आई, उसका मुंह ऊपर, आंखें पीछे की ओर, पूरा शरीर फूला हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ आवाज नहीं। डॉक्टर दबा रहे हैं, मर गई जिंदा है, मर गई जिंदा पता नहीं। बगल में उसको खड़ा कर दिया, ग्लूकोज चढ़ाया, फटाफट कोई इंजेक्शन तो लगाया, कुछ तो इंजेक्शन लगाया। ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद उसके मुंह से आवाज आ रही, थोड़ा थोड़ा उसके मुंह से आवाज लगने लग गई, और फिर आंसू बह रहे हैं, और वो हूं ही कर रही है आधे घंटे तक। वो तो ज्यादा कम रो रही है, उसकी बेटी बाहर जाके अधिक रो रही है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा शांत हो गई, उसके मुंह में कुछ जलेबी डाल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, आई डोंट नो, लो बीपी हुआ, लो शुगर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ। बट द पॉइंट इज, एक छोटा सा पुर्जा इधर उधर हो जाए शरीर का, और हमारी हालत क्या हो जाती है। एक कांटा चुभे, एक सुई चुभे तो आदमी को जान निकलने जैसी हालत हो जाती है। पर फिर भी इल्यूजन, फिर भी मदता, मैं हूं कुछ, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मेरा, मैं और मेरा। दिस इज व्हाट इज इल्यूजन, दिस इज व्हाट इज इल्यूजन, दिस इज व्हाट इज कॉजिंग मी great pain, great fear, and my life is coming to an end. इसलिए इस हाईवे पे 2 चोर बैठे हुए, एक चोर मेंटल स्पेकुलेशन और दूसरा फ्रूटिव एक्टिविटीज। मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मनगढ़ंत विचार मैंने स्थापित कर चुका हूँ, अपने मनगढ़ंत प्रोसेसेस मैंने बना के रखी है अपने सुख प्राप्त करने के। मनगढ़ंत मतलब अपने मन के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही है, इसमें मुझे सुख मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही करना चाहिए। अरे आप क्या बोलोगे, आप क्या जानते हैं, वो क्या जानता है, उसको क्या मालूम, गुरु वैष्णव क्या जानते हैं, शास्त्र क्या जानते हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से, मुझे अच्छे से पता है। और कुछ कर्मकांड की एक्टिविटीज कि मैं कैसे तो और सुख प्राप्त कर सकूं, और कुछ ना कुछ संसार में भोग कर सकूं। ये दोनों ही जो चोर है मुझे हमेशा लूट रहे हैं और मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। एंड फाइनली दे आर थ्रोइंग मी इनटू द ओशन ऑफ मिजरी। बार बार मुझे ओशन ऑफ मिजरी क्या है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मुझे गिरा रहे हैं। एट सच अ टाइम ऑफ दिस, माय डियर कृष्णा, यू आर माय ओनली फ्रेंड। मैं जान गया हूं मेरे मित्र केवल आप है, आप ही, क्योंकि आप परम दयाल है, आप दया के सागर है, और मैं संसार के कष्टों में गिरा पड़ा हूं, इसलिए मेरे पास कोई शक्ति नहीं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसलिए मैं केवल आपके ही चरणों का आश्रय लेकर तो आपको बार बार पुकार रहा हूं कि मुझे इस बहुसागर से बाहर निकालिए। मेरी कोई अलग से सत्ता नहीं है। आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डस्ट, ऑफ योर लोटस फीट। मैं आपके चरणों की करण जो धूली लगी हुई है उसका एक कण हूं, उसी में मैं सुखी रह सकता हूं, उसी में मेरी भलाई है। परंतु मैं ये भूल चुका हूं, आई हैव फॉरगॉटन दिस एंड बाउंड बाय द नेटवर्क ऑफ माया। दिस इज द इल्यूजन, दिस इज हाउ वी आर लिविंग, एंड दिस इज व्हाट आवर आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर इज प्रेइंग ऑन आवर बिहाफ कि भाई हम सब जीवों की यही हालत है, यही अवस्था है। हम इस प्रकार से ठाकुर से प्रार्थना करके बाहर आए और कम से कम अपनी इस अवस्था को समझ पाए कि हमारे क्या अवस्था है जीवन की, हम किस अवस्था में अभी यहाँ पर पड़े हुए।
सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज कथा, आप सब भक्तों का धन्यवाद। ये भजन का अर्थ हमने पढ़ा। हार्दिक स्वागत अमन प्रभु, नेहा दीदी ऑल्सो देयर, चंद्रकांता हाँ जी दीदी, प्रभु जी, हाँ जी, मैं अभी इधर ही प्रभु जी। हाँ जी। देवश्री दीदी, दीक्षा दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, प्रतिभा दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, सचिन सदाजित प्रभु, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, श्रेया दीदी, धीर कृष्ण प्रभु, श्रुति दीदी, सुरेंद्र नाथ प्रभु जी और रीमा दीदी उनके साथ रहेंगी। तो आप सब भक्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर सप्त श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अस्मिन प्रणाम अर्पण करते हैं। उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंद और विशेष कर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद की कृपा की प्रार्थना करेंगे, जिनकी कृपा से हम थोड़ा सा ये माधुर्य कादम्बनी रूपी ग्रंथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने माधुर्य कादम्बनी के दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी लास्ट फेज में हम अभी है, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें आज का टॉपिक है श्रद्धा। पिछले टॉपिक में हमने क्या सीखा, किसी को अगर याद हो? What did we learn from last माधुर्य कादम्बनी कथा? मंद सुमंद मतियोर मंद भाग्य उपहाद्रता। हमारा मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, मंद सुमंद, सब कुछ मंद ही मंद है, इसलिए हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट है। पर फिर भी थोड़ा सा अगर लॉन्ग ब्रेन क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को थोड़ा सा हिला दिया जाए, कुछ याद आ जाए। What did we discuss last? प्रभु जी पापों के बारे में In भी this matter, डिस्कस last Saturday, और पापों के बारे में डिस्कस किया और कुछ किया। उसके शुभदा बाद और क्लेश अग्नि के बारे में प्रभु शुभदा जी। और वेरी नाइस। तो लास्ट टॉपिक वाज शुभदा। 4 प्रकार हैं। हम्म। क्लेश अग्नि और पाप 4 प्रकार के होते हैं, इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया। क्लेश अग्नि और पापों का डिस्कशन किया। उसके बाद शुभदा का भी डिस्कशन किया। शुभदा, व्हाट इज शुभदा? सर्वगुण सब कुछ शुभ हो हमारी जिंदगी में, शुभ कलेश के बाद शुभ हो जाए। कलेश और शुभ साथ साथ है, तो आगे शुभ आपने क्या है? बोला व्हाट इज शुभ? शुभ ही शुभ होना। शुभ ही हाँ। शुभ होना तो भगवान ठीक के है, बट व्हाट इज भगवान डेफिनेशन ऑफ शुभ? हमारे ऊपर जो कृपा भगवान की है, भक्ति में आगे बढ़ना वही शुभ है। शुभ भगवान का के दा- कार्यों में टेस्ट आना और मटेरियल चीजों में हाँ। डिस्टेस्ट आना। हम्म। एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग? प्रभु शुभ जी का एक दान लाइन मुझे करना। याद है, हाँ शिवानी दीदी। श्रवण कीर्तन आदि में मतलब अनुरक्ति होना और भगवान की अनुभूति होना और विरक्ति होना समस्त संसार में, ये आपने कहा था। दो चीजें हैं शुभदा का डेफिनेशन, आपने बराबर बताया, बस जस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज। जो देवश्री दीदी ने या दीप्तोषी दीदी ने ऑलरेडी कवर तो किया ही है। या कोई ज्वाइन करना चाहता है? नहीं। शुभदा में दो चीजें होंगी, फिर से लास्ट टाइम। What are the two things what will happen in शुभदा? अगर शुभ हो रहा है मेरे जीवन में, भक्ति साधन भक्ति मैंने शुरू की है, अभी जीवन में शुभ हो रहा है, वो शुभ क्या है? भगवत चीजों में अनुरक्ति और आप कर्म खत्म हो जाएंगे और संतुष्ट रहते हैं। भजन में आगे बढ़ेंगे। शुभ आगे वही लगता बीज मिलेगा। नहीं, हाँ जो चंद्रकांत दीदी थोड़ा सा आप बोलिए, ठीक है, लेट यू कवर इट, देन इफ यू नॉट देन आई विल आस्क अदर डिवोटीज। या बताइए चंद्रकांत दीदी। हमारे जीवन में शुभ होना कि हमारा भजन आगे बढ़ेगा और जो कलेश है वो धीरे धीरे मिट जाएगा और हम भजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। शिवानी दीदी बताओ। प्रभु जी भक्ति रिलेटेड जो भी कार्य है उनमें हमारी अनुरक्ति होना, उसमें टेस्ट आना, और जो मटेरियल चीजें है भक्ति के विरुद्ध जो भी कार्य है उसमें डिस्टेस्ट विरक्ति आना। शुभ दैट इज शुभदा। सो शुभदा सब कुछ अच्छा होगा, वो अच्छा क्या है?
सब कुछ तो अच्छा होगा, मगर वो अच्छा क्या है? मैं सोचूंगा अच्छा है कि मेरे को बंगला, गाड़ी, करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिल गया, सुंदर स्त्री मिल गई, सुख शांति मिल गई, शरीर स्वस्थ हो गया। क्या ये शुभदा है? नहीं। व्हाट इज रियल शुभदा? रियल शुभदा का डेफिनेशन, शुभ होने का क्या डेफिनेशन है? शुभ होने का डेफिनेशन प्रभु जी आध्यात्मिक सुख भजन, मतलब आध्यात्मिक सुख, प्रेम आध्यात्मिक सुख, आगे बढ़ना, दो प्रेम से चीजें बताई गई जो भी हमारी अच्छा लगने लगेगा हमको। दो हमें कथा सुनना अच्छा लगेगा, भजन करना अच्छा लगेगा, भगवान का नाम अच्छा लेना अच्छा लगेगा। वेरी गुड। सो ये शुभदा है, अर्थात जैसे शिवानी दीदी बताया अभी, या आप सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सेम चीज को कंप्लीमेंट किया, बट टू बी प्रिसाइज, टू थिंग्स विल हैपन, डिस्टेस्ट, और आपने देवश्री दीदी भी, डिस्टेस्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक भोगों से हमारी विरक्ति होगी, और भगवत संबंधी वस्तुओं से हमारी प्रीति होगी। अर्थात जो दीदी बता रही श्रवण कीर्तन कथा, इसमें आनंद आने लगेगा। और जो सांसारिक भोग है, जो सांसारिक एंजॉयमेंट है, जिसको हम एंजॉय पहले करते भी होंगे, किया भी होगा, करते भी हैं, पर धीरे धीरे उनके अंदर हमारी विरक्ति हो जाएगी। हम एकांतिक भजन करना पसंद करेंगे, भक्तों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, बाकी संसार में लोग मॉल जाएंगे, थिएटर जाएंगे, यहाँ जाएंगे घूमने, वहां जाएंगे, धीरे धीरे हमारी उनसे अनासक्ति हो जाएगी। विल नॉट फील टेस्ट इन दैट। जैसे कल हम लोग दीक्षा को लेके गए थे घूमने वाटर वर्ल्ड में। अब वाटर वर्ल्ड में तो चलो 1500 रुपए भरे, पर मैं वहां पे जाके करूंगा क्या? व्हाट विल आई डू? चलो वो लोग दीक्षा थोड़ा पानी में घूमी, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि व्हाट आर दे डूइंग। एवरीवन वांट्स टू बिकम हैप्पी हियर, एवरीवन इज लुकिंग हियर। लगभग 3 घंटे में मैं बस ऑब्जर्व ही कर रहा था कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। कोई चाहे स्लाइडिंग में है, या कोई बारिश में नाच रहा है, या कोई कूद रहा है, या कोई बच्चे हैं, व्हाटएवर। बट एक टिंज भी हृदय में इच्छा नहीं हो रही कि मैं भी थोड़ा सा इसमें पानी में घुस जाऊं, या थोड़ा सा नहा लूं, इतना पानी है तो मैं भी एक बार बैठ जाऊं इस पानी में। तो इट इज नॉट दैट कि भाई ऐसा कुछ भक्ति आ गई है, बट one thing is surely happening, you don't feel interested in these things that when your bhajan starts growing. Initially आधे घंटे में दीक्षा बोले, अरे ठीक है चलो यहाँ से भागने, यहाँ पे आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, हम घर पे ही चलेंगे। बट द पॉइंट इज, संसारिक व्यक्ति इतना उसमें सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सुख उनको नहीं मिल रहा है। सुख ढूंढने का प्रयास बहुत कर रहे हैं उन चीजों में, चाहे झूले में झूमना है, चाहे घूमना है, चाहे थिएटर में जाना है, चाहे मॉल में जाना है, चाहे कुछ खाना है, चाहे कुछ पीना है। अब जो बद्ध जीव है, जिसकी अवस्था बहुत गिरी हुई, वो तो समझ नहीं पाएगा, वो तो उसमें आनंद ढूंढेगा, उसको मिलेगा भी, क्योंकि उसकी अवस्था हमेशा रिमेंबर उस शराबी की है जो नाली में पड़ा हुआ है, और नाली का मलमूत्र ही उसको बड़ा आनंदित आ रहा है। उसकी अवस्था डिग्रेडेड है, उसकी बात नहीं कर रहे। पर जो व्यक्ति साधन भजन कर रहा है, अभी यहाँ पर श्रद्धा के नेक्स्ट स्टेज की बात चल रही है, साधन भजन की। ऑल्दो वी विल डिस्कस अबाउट श्रद्धा टुडे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जो व्यक्ति को भक्ति लता बीज मिला है। अभी भक्ति लता बीज किसको मिला है? भक्ति लता बीज किसको मिलता है? कब मिलता है? कब मिलता है भक्ति लता बीज? फर्स्ट चैप्टर। प्रभु जी, जब गुरु और कृष्ण की कृपा होता है किसी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, विशेषकर जब गुरुदेव ये हम पे कृपा करेंगे। मतलब क्या करेंगे? गुरुदेव क्या करेंगे? दीक्षा काले गुरु करे। क्या होता है दीक्षा काल में? व्हाट हैपेंस इन ड्यूरिंग दीक्षा? व्हाट इज दीक्षा प्रोसेस? व्हाई दीक्षा इज इंपॉर्टेंट? दीक्षा मेरी बेटी नहीं है, दीक्षा अर्थात दीक्षा। व्हाई दीक्षा इज इंपॉर्टेंट? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दीक्षा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीक्षा? गुरुजी संबंध ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं गुरुजी, मंत्र देते हैं, संबंध भगवान के साथ। कहते दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताही काले गुरु करे वरण। दीक्षा काल में शिष्य आत्मसमर्पण करता है। इट विल कम टॉपिक नेक्स्ट एनीवे, साधु संघ के अंतर्गत। बट दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है गुरुदेव के चरणों में, और गुरुदेव उसके समस्त कर्मों को, प्रारब्ध अपरारब्ध कूट बीच सबको ले लेते हैं। अब ये नया एकदम साफ सुथरा व्यक्ति है, अब इसके पास कोई कर्म नहीं, प्रारब्ध कर्म थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा जो तो क्योंकि फल आ चुका है, बाकी तो हट जाते हैं। बट इमीडिएटली ही इज क्रिएटिंग अगेन सो मेनी कर्मास। व्हाई? अगेन ही इज क्रिएटिंग सो मेनी लाइफ टाइम। अभी सारे लाइफ टाइम खत्म हो गए उसके आत्मसमर्पण। पर आत्मसमर्पण होगा तब, खाली मंत्र लेने से आत्मसमर्पण नहीं होता। मेरी श्रद्धा अगर गुरुदेव के चरणों में नहीं है तो आत्मसमर्पण नहीं कहलाएगा।
शरणागति नहीं कहलाएगी। नाम से दीक्षा लेने से नहीं होगा, मंत्र ले लिया, माला ले लिया और मैं शिष्य बन गया, नहीं। मेरी श्रद्धा है ही नहीं, मेरी सेवा भावना है ही नहीं। मैं गुरु को भी भोग करना, मैं गुरु भोगी हूँ। गुरु भोगी अर्थात मैं क्या गुरु भोगी अर्थात मैं गुरुदेव के प्रॉपर्टी, मठ, मंदिर, साधु, उन सब का भोग करना चाहता हूँ। माय मेंटालिटी इज टू एंजॉय देम, टू यूज देम इन माय सर्विस, नॉट टू सर्व देम। तो कई बार कई लोगों को बुरा लगता है, बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा सेवा करो, दीदी थोड़ा सेवा करो। अरे ये व्यक्ति तो बहुत मुझ बोलता ही रहता है, हमारे भले के लिए नहीं। हम तो करते हैं, हम तो सुबह शाम लगे हुए हैं। हम तो 4 बजे से सुबह से शाम को 10-12 बजे तक कुछ न कुछ सेवा में थोड़ा बहुत गुरु जी जो करा रहे हैं कर रहे हैं। So when you come on Sundays or some days which I'll do some seva, and Sundays also you are not there, we are doing, but the objective is to give you some स्कृति bulb from this place. Otherwise अगर केवल आया, प्रसाद पाया और चले गए, या कथा सुनी, कीर्तन सुना, हमने सेवा ली पर सेवा नहीं की, तो जो स्कृति लाभ, जो पुण्य कर्म हमने इकट्ठा किया था वो खत्म हो गया। Try to understand. When you come to math, when we stay in math, not only in brahmachari, even sannyasi, पूर्व लाइफ की स्कृति के कारण, इस जन्म के पुण्य कर्मों के कारण, स्कृति के कारण भगवान ने हमको अभी साधु संग प्रदान किया, महाप्रसाद प्रदान किया, सेवा प्रदान करने का मौका दिया। नाउ आई एम गोइंग देयर, आई एम एक्सेप्टिंग सेवा, आई एम टेकिंग प्रसाद, आई एम एक्सेप्टिंग सेवा, आई एम हियरिंग हरि कथा, आई एम एक्सेप्टिंग सेवा, आई एम ऑलवेज एक्सेप्टिंग सेवा, आई एम एंजॉयिंग कीर्तन, आई एम एक्सेप्टिंग सेवा। सो नाउ यू आर टेकिंग सेवा, मीन्स आपकी जो स्कृति है वो खर्चा हो रहा है। आपने जो इकट्ठा किया था सुकृति का खाता, it is giving you results, you are enjoying that, you are using that, but it is a place to increase the स्कृति further, not to spend your स्कृति। आपके पास 1 करोड़ खर्चा आया है, उसको खर्चा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मठ मंदिर में बैठेंगे, आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, हम अपने कमरे में बैठेंगे, सोएंगे। चलो मठ में जाते हैं 2-4 दिन रहने के लिए, सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, वो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे हमको, हम सो जाएंगे। What is going to happen? स्कृति is going to finish, भजन से मन हट जाएगा, भक्ति से आदमी छूट जाएगा। So the opportunity is there to serve. That is why गुरु वैष्णव बार-बार, किसी को बुरा भी लगता होगा, लगता भी होगा, या है भी शायद, सुबह इतना की बोलता है सेवा करो, कुछ करो। जो भक्त है, जो जानते हैं, जो सेवा करते हैं, वो तो करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर किसी को लग भी सकता है और लगता भी होगा शायद। I have nobody came to me, but I am just saying, आप लोगों को नहीं, जो यहाँ पर कथा में वो नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। Why? Because it is for our benefit to do some service. I should get more. मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए, स्कृति का 10 करोड़ हो जाए, 1 अरब हो जाए, ताकि वो स्कृति के बल से मुझे उत्तम भक्तों का संग मिलता रहे, शुद्ध भक्ति मिलती रहे और मैं भजन आगे में बढ़ता जाऊं। अदरवाइज शुभदा नहीं होने वाला। इसलिए भक्ति लता बीज जो है, जिसकी हमने बात की, गुरुदेव की शरणागति क्या है, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण सरेंडर, पूर्ण शरणागति, एकांतिक भक्ति, एकाकी भक्ति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एका व्यवसायत्मक बुद्धि एका करो सु करो नंदना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, एक जगह भक्ति रखो, एक जगह अपना मन को केंद्रित करो, यहां वहां मत भटको। डोंट मेक योर माइंड लाइक अनचेस्ट वुमेन। ऐसा मत बनाओ अपने मन को। एक जगह पर अपने मन को केंद्र करो, सेवा करो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, एक जगह पर। डोंट मेक लाइक अनचेस्ट वुमेन। Our mind will always take you here and there. यहाँ भी करेंगे, वहां भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा भी जाएंगे। No, it is not good for our साधन भजन। इसलिए यहाँ पे वर्णन करते हैं, विशेषकर शुभदा से आप समझने का प्रयास यही है, भक्ति के कार्यों में हमको आनंद लगने लगेगा, कथा कीर्तन में आनंद आने लगेगा, प्रसाद सेवा में, मठ मंदिर में सेवा में, या घर में ठाकुर जी की सेवा में। नॉट ओनली मठ मंदिर, इवन अवर होम, मेरे घर में, अरे तू भोग लगाएगा, तू भोग लगा, मैं नहीं लगाऊंगा, तू भोग लगा। There is no desire even to offer भोग। आरती, तुम आरती करो, मैं तुम आरती करो। जस्ट चेक, मेरा रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही तो समीशु, साधन भजन ठीक, साधन भक्ति ठीक से नहीं हो रही। तो इसलिए दिस इज, जैसे मैंने ये माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ एक चेक है हमारे लिए। Am I feeling interested to accept the activities of साधन भक्ति, और I am feeling distaste towards it? अगर मैं डिस्टेस्ट हो रहा है, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, कुछ न कुछ हो रहा है, ये मेरे को भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं। आई एम फीलिंग टेस्ट टू डू मोर सेवा, मोर कथा, मोर कीर्तन, मोर चैंटिंग, देन इट इज इंक्रीजिंग। तो इसलिए ये 2 चीजें होंगी। बाद में इसके साथ कुछ गुण भी नेचुरली आएंगे। वो गुण नेचुरल है, गुस्से के समय चेहरा लाल होना नेचुरल है,
दुख के समय आंसू बहना नेचुरल है, अलग से आंसू बहनाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख के समय आनंद होकर के नाचने का अलग से नहीं प्रयास करना पड़ता, खुद ब खुद आनंद से आदमी नाचेगा, ये नेचुरल है। उसी प्रकार से क्षमा, दया, अनुकूल्य, सत्यता, सरलता, सौम्य, धैर्य, गंभीरता, अमानतवा, मानदात्वा, दूसरे को मान देना, सर्व सौभाग्य, ये सब आना नेचुरल है। और उसके प्रति जो है भगवान विशेष कृपा करेंगे। और फिर हमने सुना कि ये शुभदा जो है ये किस प्रकार से एट द सेम टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, शुभदा के साथ साथ दूसरा क्या चलेगा साथ साथ, क्लेश अग्नि, क्लेश के साथ क्लेश विनाश। हाँ, तो ये दोनों एक साथ पैरेलल प्रोसेसेस होंगी। कैसे होंगी हमको पता नहीं लगेगा। जिस प्रकार भोजन खाने से हमने सुना कैसे भूख मिटती है, एनर्जी आती है और साथ ही साथ हमको संतुष्टि होती है। कौन पहले हुई, पहले भूख मिटी या पहले मैं संतुष्ट हुआ या पहले मुझे एनर्जी आई, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, इसका क्रम स्थापित करना संभव नहीं है। पर ये तीनों क्रमशः एक साथ होते हैं। और पहले ये हुआ थोड़ा सा, एक सेकंड बाद पहले भूख मिटी या पहले हमारे पास ताकत आई। खाने से दोनों साथ नहीं होगा, भूख भी मिटेगी, खाना भी एनर्जी भी आएगी, भूख भी मिटेगी, संतुष्टि भी आने लगेगी। अरे पहले भूख मिटेगी पहले संतुष्टि आई, दोनों तो एक से जुड़े हुए हैं ना। तो इसलिए पहले कलेश दूर हुए या पहले मुझे शुभदा हुआ जीवन में, शुभ आना शुरू हुआ या कलेश घटना शुरू हो गए, ये हुआ कि वो हुआ, दोनों साथ हुए। और सर्व सौभाग्य में हमने सुना, सर्व सौभाग्य मतलब सारे जीव आपके प्रति प्रीत करेंगे, भगवान के प्रति प्रीति होगी, भगवान को आकर्षण करेंगे और सब कुछ शुभ शुभ जीवन में होने लगेगा। ये भी सर्व सौभाग्य का लक्षण है। मतलब भक्ति, साधन भक्ति के लक्षण से ही जीव के अंदर समस्त प्रकार के जीव उससे प्रीति करना शुरू करेंगे। फिर प्रश्न यहां पर आता है कि भाई अगर सभी प्रकार के जीव उससे प्रीति करते हैं, चलो ठीक है, साधन भक्ति का ये लक्षण है कि सभी प्रकार के जीव उससे प्रीति करेंगे, तो फिर भाई हमने कथा सुनी है, युधिष्ठिर महाराज पांडवों के बहुत सारे दुश्मन थे, वो तो भगवान के इतने प्रिय भक्त है, तो उनके दुश्मन क्यों थे उनके दुश्मन? अगर साधन भक्ति का ही ऐसा प्रभाव है कि सभी जीव आपसे प्रेम करना शुरू करेंगे, तो वो तो प्रेम भक्त है, वो तो भाव भक्ति के ऊपर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उनके शत्रु कैसे हुए? व्हाट इज द आंसर? जी वो भगवान की लीला है, भगवान की लीला के अनुगत्य है, क्योंकि भगवान धर्म संस्थापना करना चाहते थे, उनके मतलब माध्यम से कुछ काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला ऐसा कष्ट, उनकी दुर्म पत्नी को वस्त्रहरण, why all these things, why Duryodhana was so envious about them? Question is enviousness, या उनके प्रति जो अगर सभी प्रीति करते हैं तो दुर्योधन प्रेम क्यों नहीं कर रहा उनसे? उनका सारा राजपाट उसी को मिले, सब कुछ उसी को मिले, उसके लिए क्यों? मतलब क्वेश्चन है, अगर साधन भक्ति की स्टेज में का एक लक्षण है कि इसमें समस्त जीव आपसे प्रेम करेंगे, तो समस्त जीव प्रेम करने चाहिए, तो ये क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, वी डिडंट कवर इट बट वी विल कवर इन सिंपल टर्म। द आंसर इज वो उसके लिए लागू है सर्व जीव जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जो कम से कम उस कैटेगरी में है जो मनुष्य भगवत भक्ति की कैटेगरी में बोलेंगे। जिसको श्रद्धा ही नहीं है, भगवत नाम में, भगवान में, उनके लिए वर्णन नहीं किया गया कि वो प्रीति करेंगे। अब जैसे हम बोलेंगे हम तो साधन भक्ति कर रहे हैं, अब हम साधन भक्ति खूब कर रहे हैं, मंदिर में साधन भक्ति हो रही है, बांग्लादेश में आकर के अटैक हुआ, मंदिर में पुजारी और बहुत लोगों को मारा गया, आतंकवादियों ने अटैक किया, आपने सुना होगा। तो वो तो फुल टाइम सेवक है भगवान के, वाई? अब मैं बोलूंगा आतंकवादी मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, उन सब के पर उनको श्रद्धा नहीं है। जिनको जो भक्ति मार्ग में है या जो साधक है या जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जीव है, वह उनसे प्रीति करेंगे, उनका तात्पर्य यहाँ पे वर्णन किया गया। नॉर्मल कोई भी व्यक्ति प्रेम करेगा, हर कोई आतंकवादी आके खड़ा बोले मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो नाम जप कर, मैं 1 लाख नाम जप कर रहा हूँ, 2 लाख नाम जप कर रहे हैं, हम तो रूप गोस्वामी तो इतना भजन कर रहे हैं वृंदावन धाम में, और औरंगजेब आकर के सारे मंदिर तोड़ रहा है, उसको उनके प्रति प्रीति नहीं होनी चाहिए उनको?
वो तो शुद्ध महाभाग, वो तो शुद्ध भक्त प्रेमा भक्त है। नहीं, वो साहब उनके लिए नहीं कहा गया है ये भक्त। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं कहा गया है जिनको भगवत नाम में, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। और फिर उसी टॉपिक के सीक्वेंस में विष्णु ठाकुर बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस श्रद्धा। अब बोलते हैं श्रद्धा नहीं तो श्रद्धा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा। फिर बताते हैं श्रद्धा भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रथम सोपान श्रद्धा है। भक्ति मार्ग में जो पहली सीढ़ी है, आध्यात्मिक जगत की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। आप सब लोग अगर यहाँ पर है, कुछ तो श्रद्धा है आपके अंदर। किस प्रकार की श्रद्धा है वो आगे डिस्कस होगा, आगे हम एनालाइज करेंगे, मगर कुछ तो श्रद्धा है। महर्षि पतंजलि अगेन जो महर्षि पतंजलि हमको क्लेश के 5 प्रकार भी सुनाए, 6 प्रकार के क्लेश बताए। वो बता रहे हैं चित्त की संप्रसन्नता को श्रद्धा कहते हैं। हमारे चित्त की, हमारे माइंड, हमारी संप्रसन्नता, सम रहना और प्रसन्न रहना। Our mind is fixed. It is fixed. It is some. In what? In Krishna. In शास्त्र. उसको श्रद्धा बोलेंगे। श्रद्धा चेतसा संप्रसादः। संप्रसन्नता का अर्थ है विषयों में संदेह का नाश और वस्तु के विषय में दृढ़ विश्वास। संप्रसन्नता को श्रद्धा बोलेंगे। तो संप्रसन्नता क्या है? संप्रसन्न शब्द से क्या अर्थ मिलेगा? संप्रसन्नता मतलब संदेह का नाश। कौन से संदेह का नाश? भगवत संबंधी विषय संदेहों का नाश, उसको बोलेंगे संप्रसन्नता। और विषयों में एवं वस्तु के विषय में दृढ़ विश्वास। भगवत संबंधी वस्तु में दृढ़ विश्वास और संदेह का नाश, 2 चीजें होंगी। एक तो दृढ़ विश्वास स्थापित होगा, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्वकृत्य है। कृष्ण भक्ति में इसकी श्रद्धा है। कैसे पता लगेगा भाई ये श्रद्धा है कि नहीं है? इसको कृष्ण भक्ति में इसको श्रद्धा है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? क्या डेफिनेशन दिया रूप गोस्वामी जी ने? श्रद्धा शब्द को क्या कहेंगे? सुदृढ़ निश्चय। क्या निश्चय? कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण सारे भक्ति काम हो जाएंगे। करने सर्वकृत्य है। तो 2 चीज हो गई। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा? कृष्ण भक्ति करने से सर्व सिद्धि हो गई भाई। अब उसको शास्त्रों में पूर्ण विश्वास है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं रहा, संदेह का नाश हो चुका है। देयर इज नो लेश मात्र भी मन में संदेह नहीं है कि शास्त्र में कोई त्रुटि हो सकती है, शास्त्र में किसी प्रकार की गलती हो सकती है। ये पूरा विश्वास आ चुका है जीव के अंदर। जैसे पिछली बार हमारे सचिनंदन प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे कि भाई कौन मानेगा सूर्य घूम रहा है, उसके घोड़े हैं, उसमें रथ है। हम तो चलो भक्त मानते हैं, कौन मानेगा? बाकी को बोलेंगे कैसे? एवरीवन नो, साइंस ने बोला सूर्य पूरा अर्थ ही तो सन के घूमती है। हम बोलते हैं सूर्य घूमता है घोड़ों को लेकर के, सुबह निकलता है, घूमता रहता है। अरे ये तो कोई फैंटेसी। मेनी पीपल विल से दैट। व्हाई? बिकॉज नो श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। अब संदेह है, ऐसा हो सकता है क्या? सूर्य के अंदर जीव कैसे रह सकते हैं? Prabhupada used to say people were not believing there can be life in sun until Jagdish Chandra Bose discovered what he discovered. What did he discover? What was the discovery of Jagdish Chandra Bose? J.C. Bose was an Indian scientist, Nobel Prize winner. हाँ? plants में life का provision. हाँ, there is a fire bacteria. There is a life in the fire. फायर में एग्जिस्टेंस, फायर में कैसे जिंदा रह सकता? फायर में सब जल जाता है। There is a fire bacteria. There is a life in fire. अग्नि है उनके अंदर, अग्नि के अंदर जीवन। जब मटेरियल सेंसेस से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके तुम इस चीज को समझोगे कि फायर में भी लाइफ है, तो जो हमारे शास्त्र, जो अदोक्ष ज्ञान है, जो भगवान का ज्ञान है, जो परमात्मिक ज्ञान है, हमारी लिमिटेड सेंसेस के अनुसार हम कुछ तो कुछ एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारे लिमिटेड सेंसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको हम रिजेक्ट करेंगे। अरे चंद्रमा पे तो लोग गए हैं, चंद्रमा पे लाइफ कैसे है? चंद्रमा ग्रह में कैसे लोग रह सकते हैं? हमारे तो लोग गए वहां पर, झंडा गाड़ के आ गए। कहाँ झंडा गाड़ के आ गए? चंद्र कहां पर है? 281 मिलियन 281 मिलियन व्हाट किलोमीटर्स और माइल्स फ्रॉम अर्थ आफ्टर सन, isn't it? चंद्र कहां पर है? Where is moon?
मून इज नेक्स्ट टू सन, आफ्टर सन, और सन का टेम्परेचर कितना है? बहुत ज्यादा, 3000 सम डिग्री सेल्सियस और समथिंग। अगर लोहा भी पहन के जाएंगे वो भी भस्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हाउ कैन यू गो देयर? यू विल सेल सैटेलाइट टू सन, देन यू विल से मैं सैटेलाइट देके वहां पे भेजा और वहां पे मैं लुक के आ गया, वहां पे मैंने झंडा लगाया, वहां पे मैंने वहां से मिट्टी उठा के लाया। कौन सा सैटेलाइट, कौन सा मेटल वहां पर नहीं पिघलेगा? देन हाउ कैन यू गो टू मून विच इज बियॉन्ड सन? जो सूर्य के बाद है चंद्र, तो पहले नहीं है, उसके बाद है, ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस पे, बट फ्यू 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन। तो अभी हम क्या बोलेंगे, ये साइंटिस्ट सब झूठ बोल रहे हैं? कहीं गए, कहीं कुछ लगा उनको, यही चांद है, वहीं पे रुका, ऋषि झंडा गाड़ परसों के आ गए। वो अपना प्रभु जी, ऋषु परसों ना एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो उसमें नील आर्मस्ट्रांग का वो जो फर्स्ट पहली क्या बार बोला गए था? थे मून पर, उसको बाइबल रखा है सामने कि बाइबल का कसम दे दो कि आप मून पर गए थे। तो वो हंसा है, वो उसने देखी हुआ, मेरे को दिखा रहा था वो डॉक्यूमेंट्री, तो वो झूठ ही था, कुछ नहीं था वो ऐसा क्या कुछ। हमारे शास्त्र जो है कभी भी नहीं झूठ बोलेंगे, बाकी कोई भी झूठ बोल सकता है। अब उनके लिए प्रभुपाद यूज्ड टू से देयर कैन बी अ मून लुकिंग प्लैनेट जिसमें रिफ्लेक्शन आया, लाइट आया, उनको लगा यही मून है, उनकी लिमिटेड सेंसेस है। अभी हम क्या बुक्स में कल से लिखेंगे बच्चा सच में, तो बोलेंगे देयर इज नोबडी हैज गॉन टू मून? नो, सांसारिक दृष्टिकोण से हम लिखेंगे, बिकॉज दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल, वी हैव टू आल्सो राइट इन आवर पेपर्स। बट हमारी श्रद्धा शास्त्र में अगर है तो हम जानते हैं हम बस एग्जाम के लिए, संसार को दिखाने के लिए लिख रहे हैं। बट रियली देयर इज लाइफ इन मून, देयर इज लाइफ इन सन, देयर इज अ सन प्लैनेट, अरुण, उसके 7 घोड़े हैं, दिस इज लाइट, दिस इज प्रूफ। बट जिसको श्रद्धा नहीं वो मानेगा नहीं। इसलिए कहा गया जब तक संदेह है हृदय में तब तक जीव जो है श्रद्धा के स्टेज पे नहीं आ सकता। और हमको पहले शास्त्र और साधु पे श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी, तब उनके वचनों पे श्रद्धा होगी। अगर साधु और गुरु में हमारी श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं आएगी। इसलिए श्रद्धा पहले गुरु और साधु में रहती होनी चाहिए। और साधु में श्रद्धा कैसे आएगी? जब हम देखेंगे उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे साधन भजन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बोलेंगे और खुद कुछ और कर रहे हैं, हमको कुछ और बोल रहे हैं कर रहेंगे और खुद और कुछ कर रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं आ सकती। we have to actually practice it practically। अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सामने वाले पे उसका असर नहीं होगा। देयर विल नॉट बी श्रद्धा, श्रद्धा नहीं आएगी, क्योंकि संस्कार अगर नहीं होंगे तो श्रद्धा नहीं आएगी। और ये प्रैक्टिकली यहाँ ना प्रचार करना चाहिए, प्रचार करो, सबको समझाओ, पर कैसे समझो? महाप्रभु ने कहा आपनो आचरण जीवन, आपको अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा। आपनो आचरण, आपको आचरण करके दिखाना पड़ेगा। समटाइम you have to act, you have to do more because you have to preach. Although you may be doing internal bhajan, you may be at a stage of internal bhajan, doing some bhajan internally, but then preaching purpose आपको सही तरीके से आपका व्यवहार करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको जीव को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज असर नहीं होगा। क्योंकि विशेषकर बच्चों की बार बात कर रहे थे, बच्चों को समझाने की, बच्चों को बताने की, बच्चे हमारे एक्शन से देखते हैं। 2-3 संडे पहले की बात है, बोलना नहीं चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, दीक्षा बोल रही चुप हो जाओ, किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, ना किसी का व्यक्ति का नाम लूंगा, बट what I am trying to say is how people learn. 2-3 kids were talking about some devotees of कि भाई इसको कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा था, ये दीदी, ये माता जी ऐसा क्यों बोलती है? ए वंशी, ए धीर कृष्ण किधर है? So the point is not to call anyone or any name. I am not giving any names. It is about learning here. It is not about criticizing anyone. People should not feel bad कि अपने बच्चों को या किसी को बोलने। But what I am trying to say, how people learn. किसी का दूर की बात है। मैं खुद one Sunday I was बहुत देर तक हम जाग रहे थे, सुबह जल्दी उठे थे, तो मैं थोड़ा सा सोने का प्रयास कर रहा था। खुद ही मैं सोने का प्रयास करता, थोड़ी सी 5 मिनट सो जाऊं, थोड़ा हल्का हो जाऊंगा, फिर कीर्तन करना है। पर नींद नहीं आ रही, इसमें जबरदस्ती ऐसे करने का प्रयास करता, थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट नींद लग जाए, क्योंकि महाराज ने ऑलरेडी 1-1.5 घंटा, 1.25 घंटा कथा कर दी थी। मैं थोड़ा 5 मिनट थोड़ा मैं हल्का हो जाऊंगा, बट देन
दीक्षा जी मेरे पास आई, बोल रही आप सो रहे थे क्या आज कथा में, या 5 मिनट ही सही। द पॉइंट इज पीपल लर्न फ्रॉम आवर एक्शंस, people learn from our actions, so we have to practice practically what we do. So it is not that किसी का व्यक्ति को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसका आचरण वैसा नहीं, बट द पॉइंट इज हाउ विल अदर पीपल लर्न फ्रॉम यू, वो कैसे सीखेंगे, वो आपके व्यवहार को देख करके सीखेंगे। विशेषकर बच्चों को जो प्रचार करते हैं, जब बच्चों को बोलते हैं ये करो वो करो, बच्चे जैसे हमारे वेंकटेश प्रभु आते हैं, बोलते हैं सैटरडे प्रोग्राम करेंगे, मैं घर पे जाता हूँ, गीता कथा शुरू करेंगे अभी उनके अपार्टमेंट में, इस सैटरडे करने वाले थे, बट देन आई हैव टू गो एंड इवनिंग आई वाज सपोज्ड टू गो, बट देन ही सेड मैं जिनके घर में जाता हूँ वो बोलते हैं हाँ हमारे बच्चे को लेके जाओ, हाँ गीता बहुत अच्छा गीता शुरू करो, बच्चे को लेके, हमारे बेटे को लेके जाओ, बेटी को लेके जाओ, अब शुरू करो, हाँ एवरी सैटरडे, वेरी गुड भाई, इट इज फॉर यू। बच्चा तब बैठेगा जब आप बैठोगे उसके बगल में। नहीं, बच्चे को हम तो सब जानते हैं, बच्चों को क्या, बच्चों को सिखाओ, व्हाट विल बच्चा लर्न जब आप खुद ही नहीं बैठोगे बच्चे के सामने, जब आप खुद माला पे जप नहीं करोगे, बच्चे को कैसे बोलोगे 16 माला कर बेटा, मैं खुद 4 माला कर रहा हूँ उसको बोलूंगा तुम 5 माला कर, नहीं बोल सकते। मैं प्याज लहसुन खा रहा हूँ उसको बोलेंगे बेटा बाहर का नहीं खाते, हा? और मैं जाकर के बाहर बढ़िया से इडली डोसा समोसा मंगाऊंगा, बेटा ले आ, मैं बाहर का नहीं खाना चाहिए, यू कैन नॉट प्रीच। इसलिए द पॉइंट इज अबाउट श्रद्धा। इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं श्रद्धा शब्द से अर्थ है वही, हमको शास्त्रों में निसंदेह पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और उस वस्तु में विषय में दृढ़ विश्वास। कौन से वस्तु विषय में दृढ़ विश्वास? भगवत संबंधी वस्तु में। इसलिए भक्ति के साधन में जाति कुल स्थान काल आदि का कोई विचार नहीं, भक्ति में प्रवेश का अधिकार एकमात्र श्रद्धा है। इसमें जाति कुल, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ाई किया है, कितना इसका कितना इसका डिग्री है, कितना इसके पास धन है, कुछ भी नहीं, केवल एक अधिकार है भक्ति मात्र का, भक्ति में आगे बढ़ने का, श्रद्धा। पहले आप साधु पे श्रद्धा करना सीखो, जिस संस्था से, जिस मठ से, जिस मंदिर से, जिस काउंसलर से, जिस गुरु से, जिस शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, श्रवण गुरु से, पथप्रदर्शक गुरु से। 5 प्रकार के गुरु हमने बताए थे शास्त्रों में, मैंने नहीं, शास्त्रों में 5 प्रकार के गुरु कौन से हैं शास्त्रों के अनुसार? एनीवन रिमेंबर? प्रभु जी, चित्त गुरु, पथ प्रदर्शन गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्रवण। तो अपने इन गुरुओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर कुछ बोलेंगे तो शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो गुरु कहलाने के योग्य नहीं। और शास्त्र में श्रद्धा, इसलिए कहा गया ये श्रद्धा बहुत ही विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। श्रद्धा के बिना कर्म ज्ञान योग भी सिद्ध नहीं प्राप्त कर सकता। अगर श्रद्धा नहीं है तो कर्म भी सिद्धि नहीं। जिस पायलट के भरोसे हम जहाज में बैठे, अगर श्रद्धा नहीं कि जहाज उड़ाएगा और मुझे दिल्ली पहुंचाएगा, मुंबई पहुंचाएगा, तो हम बैठ ही नहीं सकते। हमने कभी देखा नहीं उसको चलाते हुआ, पता नहीं वो चलाता है ठीक से, आता है नहीं आता, डिग्री है नहीं, कुछ नहीं देखा हमने उसके पास। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमारा पेट फाड़ करके ऑपरेशन करता है, हमने कभी देखा है उसकी डिग्री? आपके पास क्या डिग्री है, आपने कितने ऑपरेशन किए हैं, कितने पेट फाड़े हैं, कितने चीर फाड़ की है? नहीं। श्रद्धा है, हाँ ये करता है, यहाँ पर है, इस डॉक्टर इंस्टीट्यूट में है, बड़ा हॉस्पिटल है, जो भी है, MD है, कुछ डिग्री है, लिखा है, इन्होंने रखा है, तो श्रद्धा है। श्रद्धा के भरोसे हम अपना शरीर भी किसी को सौंप देते हैं, वो हमारा चीर फाड़ करता है। वाई? बिकॉज देयर इज सम फेथ। इसलिए कहा गया श्रद्धा के बिना कर्म भी रिजल्ट नहीं देगा। कर्म, इवन कर्म कांड में एक्टिविटी करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन करते हैं किसी लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए, कोई पूजा पाठ करते हैं, भाई मुझे पैसा दे दो, धन दे दो, प्रमोशन दे दो, या जॉब दे दो, या पुत्र की शादी करा दो, या बड़ा कॉलेज दे दो, कुछ दे दो। वी डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, दैट इज कर्म कांड, बट स्टिल श्रद्धा इज देयर, देन ओनली इट विल गिव रिजल्ट। अगर श्रद्धा के नहीं होगी, हम करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। विश्वास हो रक्षसी, भगवान मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास रखना पड़ेगा, उसको श्रद्धा बोलेंगे। वो मेरा रक्षा करने वाला वही है, वही मेरा एकमात्र सहारा, वही सब कुछ मेरा करने वाला है। विश्वास हो रक्षसी। शरणागति के 6 लक्षण क्या है? What are the 6 symptoms of शरणागति? शरणागति and श्रद्धा is similar as per Jiva Goswami in next shloka he is explaining. प्रभु जी, दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तृत्य वरण, अवश्य रक्षिव कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। दैन्य, विनम्रता, आत्मनिवेदन, गुप्तृत्य वरण, अपने हृदय के सीक्रेट्स को बताना,
अवश्य राक्षी वो कृष्ण विश्वास पालन, विश्वास कि वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति अनुकूल मात्र करे न स्वीकार, भक्ति के अनुकूल जो है उसको मैं स्वीकार करूंगा। भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार, भक्ति प्रतिकूल जो वस्तु मैं नहीं स्वीकार करूंगा उसको। दिस इज शरणागति एंड जीव गोस्वामी सेज शरणागति एंड श्रद्धा इज सिमिलर, दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। इसलिए अगर श्रद्धा है कि भगवान ऐसा करेंगे, रिजल्ट देंगे, तभी तो रिजल्ट देगा। नाम चिंतामणि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत नाम नामिनो, नाम चिंतामणि है पूर्ण शुद्ध है, नामी से अभिन्न है। अगर ऐसी श्रद्धा मेरे को है तभी तो नाम फल देगा। अगर नाम में मेरी श्रद्धा ही नहीं है तो नाम क्या फल देगा मुझे? कोई फल नहीं देने वाला नाम। अरे नाम तो ऐसे ही एग्जेजरेशन है, किसी ने बड़ा चढ़ा के बोला है भगवत नाम के बारे में, सच में थोड़ी इतना होगा। अच्छा, नामाबास अजामिल को भगवत नाम प्रदान कर सकता है। श्रद्धा या हेलिया, श्रद्धा से बोलो, अहलेना करके बोलो, गाली दे करके बोलो, तब भी भगवत नाम इतना शक्तिशाली है, उसको मुक्त करेगा, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, उसको भक्ति प्रदान करेगा। ऐसा थोड़ी होता होगा, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। इसलिए तार्किक बुद्धि नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जिसके अंदर तार्किक बुद्धि है, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, भगवान विश्वास रखो, भगवान मेरे एकमात्र सहारा है, वो मेरे लिए सुहर्द है। सुहर्द सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुना, हे अर्जुन मैं सुहर्द हूं सबका, आपके हृदय में विराजमान हूं, आपके भले के लिए सब कर रहा हूं, पर मेरे लिए तो कष्ट हो रहा है। कष्ट इसलिए हो रहा बिकॉज आई एम कंडीशनड सोल। मेरा साधन भजन, मेरी भक्ति कंडीशंस पे डिपेंड है। फेवरेबल कंडीशंस है तो करूंगा, अनफेवरेबल है तो नहीं करूंगा। इसलिए कहा गया वी आर कंडीशनड सोल, हम बद्ध जीव है। बद्ध मतलब बद्ध जीव क्या? कंडीशनड सोल मतलब क्या? कंडीशन फेवरेबल है तो भजन करूंगा, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो भजन नहीं करूंगा भाई। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडीशनड सोल। इसलिए कहा गया है जब तक जीव कंडीशनड सोल की स्टेज में है तब तक ये कंडीशंस उनको आगे पीछे घुमाती रहेंगी। और जो ही वह अनिष्ठता भक्ति से निष्ठता भक्ति में आएंगी तो कंडीशंस कैसी भी हो जीवन में, वो साधन भजन कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए यहां पर यही समझाया गया है, अश्रद्धा कर्म ज्ञान योग श्रद्धा केवल सिद्धि की अवस्था तक रहती है। यह सामान्य श्रद्धा है। सामान्य श्रद्धा किसको कहते हैं? व्हाट इज बेसिक श्रद्धा? कर्म में श्रद्धा, योग में श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा, इनमें श्रद्धा रहती है। कब तक श्रद्धा रहती है? जब तक उसका फल नहीं मिले। मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपया चाहिए, अब मैं उसके लिए कोई मंत्र, कोई यज्ञ, कोई कुछ कर रहा हूँ, या कोई भगवान करे शरीर का कोई रोग है उसको दूर करने के लिए कोई तपस्या, कोई कुछ यज्ञ या कुछ मंत्र आदि जप हो रहा है, कुछ मंत्र क्रिया उसमें चल रही है, ये एक्टिविटी हो रही है। ये कब तक करेगा आदमी? कब तक करेगा ये? अगर किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु चाहिए, उसके लिए वो कोई कर्म कर रहा है, वो कब तक करेगा वो कर्म? जब तक फल प्राप्त नहीं हो जाता। फल हुआ मतलब श्रद्धा उसके बाद खत्म हो गई। इसमें मेरा काम हो गया बट डन। या कोई योग कर रहा, मुझे योग किसी चीज को प्राप्त, मुझे हवा में उड़ना है, मुझे योगा करके हवा में उड़ना है। अब एक बार हवा में उड़ गया, उड़ना शुरू हो गया, फिर बंद कर देगा वो। इसलिए कहा गया है ये सामान्य श्रद्धा है। सामान्य श्रद्धा मतलब जब तक मेरा उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो उसको करता रहेगा, उसी अवस्था तक रहती है। ज्ञान मार्ग की श्रद्धा कैसा है? साधन अवस्था में ज्ञान, ज्ञानी साधक, ज्ञेय साधक 3 रहते हैं, परंतु सिद्ध अवस्था में केवल साध्य रहता है। साधक अवस्था में वो जानता है मैं साधक हूं, एक साधना का एक प्रोसेस है, मेरा एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का। और जब ज्ञान उसको, जब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बन गया, ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गया, तब तो खुद ही वो भगवान बन गया। फिर क्यों ज्ञान करेगा? फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। परंतु भक्ति मार्ग में जो होता है, भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में साधक अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी अपने साध्य को हमेशा पूजन करता है। उसमें साध्य, साधन और साधना ये हमेशा ही पृथक रहती है। साधन अवस्था में साधक भक्त, साधन भक्ति, साध्य भगवान, ये तीनों रहते हैं, और सिद्ध की अवस्था में भी तीनों रहते हैं। एनी डाउट अबाउट दिस? क्योंकि वहां पर जब भगवत धाम में पहुंचेगा, साधन करने से हम क्या करेंगे? भगवत धाम पहुंच जाएंगे। और भगवत धाम में क्या करेंगे? फिर आराम करेंगे। भगवत धाम जाके क्या करेंगे? फिर सेवा, हरिनाम संकीर्तन। वो सेवा क्या है? वो भी एक प्रकार से फिर से साधन ही है ना। पर साधन अभी हमको साध्य को प्राप्त करने के लिए नहीं है, साध्य को प्रसन्न करने के लिए है। इस जगत में भी जब हम अपने साध्य भगवान को प्राप्त कर लेंगे,
चाहे हृदय में, चाहे साक्षात, फिर भी हम उनकी सेवा करते रहेंगे, फिर भी हम नाम करते रहेंगे। नाम अभी हम करते हैं भगवत प्रीति के लिए, एक बार भगवान से प्रीति होगी तो नाम छोड़ देंगे? उसके बाद भी नहीं प्रभु जी। नाम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि नाम साध्य भी है, साधन भी है। इसलिए भक्ति मार्ग में ही केवल साध्य, साधन और साध्य, साधन और साधक, अर्थात साधक मतलब वही जो साधना करता है, साध्य मतलब हमारा गोल, और साधना मतलब हमारी द प्रोसेस टू अचीव दैट गोल, प्रोसेस टू अचीव द गोल एंड जिसको गोल को अचीव करना है, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस टू अचीव द ऑब्जेक्ट and the person who is going to achieve that object. से साध्य, साधक, साधना। साध्य प्राप्त करना चाहता है साधक प्राप्त करना चाहता है साध्य को, अपने गोल को, और उस प्रोसेस को बोलते हैं साधना। भक्ति अवस्था में यह तीनों रहती है, साधन के जीवन अवस्था में भी और साध्य अवस्था में भी ये तीनों रहती है। देयर इज नो चेंज। इसलिए कहा गया साधन भक्ति शुभदा है, अतः इसके प्रभाव से जगत के सभी जीव संतुष्ट होते हैं एवं भक्तों से प्रेम करने लगते हैं। परंतु देखा जाता है कि पांडवों को दुर्योधन आदि अनेक शत्रु थे। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुका है, क्योंकि इसके ये भी शास्त्रों के अनुसार है। परंतु अनेक व्यक्तियों के द्वारा, देखिए कहते हैं जिस प्रकार सूर्य जगत में अंधकार दूर करता है, एक और एग्जाम्पल दी है प्रभु जी ने, जो सूर्य जगत में अंधकार दूर करता है, पर उल्लू का अंधकार दूर करेगा क्या? चमगादड़ का अंधकार दूर करेगा? वो आंखें बंद करके बैठेगा रात भर किसी अंधेरी जगह पर, उसको अंधकार दूर हो सकता है। जो अगर सूर्य निकलते ही उल्लू अंधेरी जगह में आंखें बंद करके बैठता है, चमगादड़ उल्टा ढक बैठता है, उनका अंधकार दूर होगा। जो आंखें बंद करेगा उसका अंधकार कैसे दूर होगा? इसी प्रकार से श्रद्धाहीन व्यक्ति अंधे उल्लू के समान है। भक्तों की एवं भगवान की कृपा भी उन पर प्रभाव नहीं डालती। यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा हो तो वैष्णव दर्शन एवं भगवान दर्शन हो जाता। अतएव श्रद्धा नेत्र के समान है जो भगवान के दर्शन कराते हैं। श्रद्धा का एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, नेत्रों के समान है, हमको भगवान का दर्शन कराता है ये। परंतु उल्लू जिस प्रकार से सूर्य चढ़ते ही आंख बंद कर लेगा, उसको देखेगा नहीं और निकलेगा नहीं बाहर, उसी प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्ति जो है, जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं, भक्तों में श्रद्धा नहीं है, वो उसी के समान है। उसको कोई चेंज नहीं होने वाला, उसको उसके ऊपर असर कोई नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, वो आतंकवादी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप भक्त है क्या, उसके लिए तो बस he is a different, he is not having any श्रद्धा on that. Similarly बताया गया, अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा अगर किसी जीव के अंदर आती है तो भगवान और भक्त उनको दर्शन देते हैं, उन पर अवश्य कृपा करते हैं। इसलिए फिर यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी साधकों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का क्रम बताते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति सतायतो निष्ठा सरुचि आसक्ति तद वस्तु वासते प्रेमा भक्ति उच्यते साधक नामम प्रेमा प्रादुर्भवम भवेते क्रमः। बोलते हैं एक क्रम है प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के लिए। आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा, तदा साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर ततो धीरे धीरे निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। ये क्रम है, ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। अब कोई एकदम से बोलेगा वो तो भगवत अरे वो आया और वो तो लोटपोट हो गया जमीन पे और रोने लग गया, भाई ये क्या श्रद्धा है, ये साधन है, प्रेम भक्ति पहुंच गया? नॉट पॉसिबल। ये क्रम से ही भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। भक्ति साधक का प्रथम सोपान श्रद्धा है, और फिर श्रद्धा के 2 लक्षण है। टाइम हो गया या है टाइम हमारे पास? 10 मिनट और है। You want me to cover further or take questions? Silence means no questions. I will take it further, little bit more. The साधन भक्ति के 2 लक्षण है। अब साधन भक्ति श्रद्धा, साधन भक्ति के प्रथम 2 सोपान श्रद्धा के 2 लक्षण है। जो साधन भक्ति का प्रथम स्टेप है, पीछे हमने सुना क्या क्रम है प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का। प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है? What are the steps? Anyone? प्रभु जी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और पहला स्टेप कौन सा है? श्रद्धा प्रभु जी। और श्रद्धा के 2 लक्षण है। क्या 2 लक्षण है इसके? पहला लक्षण बताया गया, भक्ति शास्त्रों में वर्णन किए गए विषयों के प्रति दृढ़ विश्वास। पीछे हमने पढ़ा, डेफिनेशन में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया। भक्ति शास्त्र में कहे गए साधन के अनुष्ठान में विशेष यत्नशील होकर उनके अनुसार कार्य करने का आदर पूर्वक इच्छा।
एक तो विश्वास, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास, भाई ये प्रोसेस बताई गई है, नाम चिंतामणि है, भगवान ने समस्त शक्ति नाम में रखी है, नाम नाम निकारा बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता, नियमिता स्मरण निकाला, इसमें नियम नहीं रखा गया सुबह करो शाम को करो दिन को करो रात को करो, कोई समय नहीं रखा गया। इसमें समस्त प्रकार की शक्तियां विराजित की गई। साधु ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है, ये इधर उधर भटकता रहेगा। इट इज लाइक अनचेस्ड ह्यूमन। Yesterday I was hearing one small lecture of His Holiness Guru Govind Maharaj. I will forward, very nice one. छोटा है पर सुंदर है। Hey, stop your mind. महाराज जी के वचन ऐसे ही है, stop it. This is unchaste. इस प्रकार एक अपवित्र स्त्री कभी भी कंट्रोल में नहीं रह सकती, कहीं भी अपने पर पुरुष को ढूंढती रहती। इस पर हमारा मन को थोड़ा सा भी रास्ता मिलेगा, ये भागना शुरू करेगा। इसलिए इसको रोको, इसको भजन में लगाओ। इसलिए कहा गया है, श्रद्धा शब्द से क्या अर्थ है यहाँ पर? श्रद्धा शब्द, शास्त्र में विश्वास तो हो गया, चलो ठीक है, शास्त्र में विश्वास, शास्त्र की सभी बातें सत्य है प्रभु जी, मैं मानता हूं महाराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी शास्त्र में लिखा है 100% पक्का है, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। देन हो गया क्या श्रद्धा? नहीं। दूसरा लक्षण क्या बताया गया? वो उस पर पालन करेगा, उस पर चलेगा, उसके लिए यत्न करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, सुबह मंगल आरती उठेगा, माला उठा के नाम जप करेगा, बुधवार को निर्जला एकादशी आ रही, निर्जला रखेगा, जितना शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार, पर प्रयास करेगा, यत्न पूर्वक और आदर पूर्वक उसके लिए चेष्टा करेगा। ही विल ट्राई, ही विल जस्ट डू इट। ऐसा नहीं कि कथाकार बड़े बड़े घंटू कथा देंगे और बाद में जब अपने आसन से उतरेंगे बोलेंगे मेरा सिगरेट कहाँ है भाई। ऐसे भी कथाकार आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कथाकार। चलो सिगरेट तो नहीं, चलो अच्छा क्या हुआ था स्कोर फिर आज? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, कौन जीता था? अच्छा ठीक है, हजारों लाखों शिशु होंगे, और वेयर इज द रुचि? साधन भजन में रुचि है या संसार में रुचि है? तो थोड़ा बहुत कोई संसारिक व्यवहार के लिए बात कर रहा है, वो अलग बात है। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ बोला जाने के लिए? रघुनाथ दास गोस्वामी का अभी चिड़ा दही आता, मैं फेस्टिवल आने वाला पानी हाटी, सैटरडे वी आर ऑल गोइंग टू सम प्लेस कॉल्ड नियर श्रीरंगम, सम प्लेस, वहां पर स्नान होगा, ठाकुर जी का अभिषेक होगा, आरती कथा कीर्तन होगा। ऑलरेडी 40 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है, और भी वक्त कोई आना चाहे तो बता दीजिएगा धीर कृष्ण को या मुझे या ग्रुप में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या बोला था? दैट इज द डिफरेंट टॉपिक। हाँ दीदी कुछ बोल रहे थे। नित्यानंद प्रभु जी ने आदेश किया था ना कि दही चूड़ा, और महाप्रभु ने क्या आज्ञा दिया उनको? उनके घर नित्यानंद के पास जाओ। बोलो देवशील दीदी। प्रभु जी बोले कि अपने घर जाओ, ना हो बातुल, और मतलब जो मरकट वैराग्य मत करो, अपने घर जाओ, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, ना हो बातुल। ऐसे बोला कि पागलपन मत करो, धीरे धीरे भव सिंधु कुल मिलेगा तुम्हें। मरकट व्याज्ञा ना करे लोग के दिखाए, अंतरे निष्ठा बाहरे करो लोक व्यवहार। अंदर से निष्ठा रखो, भजन करो, अंदर से पूर्ण निष्ठा, अपना साधन भजन परिपक्व करो, बाहर से लोक व्यवहार करो। बाहर से लोगों को बोलो हाँ जी क्या हाल है, बढ़िया, सब बढ़िया है, हाँ मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी विदेश जाने का प्लान बना रहा हूँ। I also am going to get BMW very soon. That is what they want to hear from you. पर ये क्या, is it not duplicity? This is the question, I think next only probably. Is it not duplicity? हम कुछ बोल रहे हैं और कुछ बाहर से कुछ अलग कर रहे हैं. What do you think? This is not duplicity. It is called व्यवहार, लोक व्यवहार. आपके हृदय में भगवत भक्ति, इसे महाप्रभु की आज्ञा, तुम बाहर तुम डुप्लीसिटी बनो नहीं, संसारिक व्यक्तियों के साथ संसारी व्यवहार करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ ए गृहस्था हैज टू बी. अब हर व्यक्ति का अधिकार अलग है, कोई भी हर व्यक्ति भगवत भजन नहीं कर सकता, ना तो उनका उसको समझना तो उसका अधिकार है. क्या उनके साथ हम उठना बैठना ही शुरू, समाज से कट ऑफ हो जाके जंगल में रहना शुरू करेंगे? नहीं. इसलिए महाप्रभु कहते हैं बाहर करो लोक व्यवहार करो, डोंट गेट अटैच्ड टू सच टाइप ऑफ पीपल, जस्ट बी व्यवहारिक विद देम. ऐसा नहीं उनको उनके साथ बात ही करना बंद करे,
नमस्कार, हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु जी, कैसे हैं? बढ़िया है, सब अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, बस चलो आगे बढ़ो। इसलिए कहा गया व्यवहार करो, इसलिए कहा गया भक्ति शास्त्र में कहे गए साधनों के अनुसार विशेष यत्नशील रहेगा, विशेष रूप से प्रयास करेगा साधन भजन के अंगों को पालन करने का, आदर पूर्वक और इच्छा से। खाली श्रद्धा होगी जी मुझे, मैं तो मानती हूँ जी, मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ, मैं तो गुरुदेव की शिष्य हूँ, मैं भी गुरुदेव से बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ी प्रेम मैं भी उनकी श्रद्धा है, पर गुरुदेव के शब्दों में कोई पालन ही नहीं। गुरुदेव से प्रीति है, पर गुरुदेव के आचार विचार में, गुरुदेव के जो आज्ञा है उसमें कोई लेना देना नहीं मेरा, इसलिए वो श्रद्धा नहीं कहलाएगी, उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। श्रद्धा मतलब यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इट, जिसको आप फॉलो करते हैं, जो भी आपके शिक्षा गुरु है, पथप्रदर्शक गुरु है, दीक्षा गुरु है, या विशेषकर जो गुरु तो शास्त्र ही बताएगा, विशेषकर शास्त्रों के वचनों में गुरु दृढ़ निश्चय रखना। इसलिए शास्त्र में दृढ़ विश्वास होने पर उनके फलस्वरूप दूसरा लक्षण अवश्य ही प्रकाशित होगा। शास्त्र में अगर दृढ़ श्रद्धा किसी को है तो वो साधन भक्ति अवश्य करेगा, खाली बोलेगा नहीं, इस जीव गोस्वामी कहते हैं। इसलिए श्रद्धा एवं शरणागति एक ही है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, शरणागति के 6 लक्षण। शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है और शरणागति ही श्रद्धा का लक्षण है। शरणागति श्रद्धा का एक लक्षण है, इसलिए जिनकी जितनी मात्रा में शरणागति है वही भक्ति में उतनी ही उन्नत है। शरणागति ही भक्ति साधन का जीवन की शक्ति है। शरणागति ही भक्ति साधक के जीवन की शक्ति है। शरणागति अगर है तो भक्ति की शक्ति है। शरणागति अगर है तो श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है शरणागति नहीं आएगी। बोलने से नहीं चलेगा, यहाँ पर बोलने से खाली नहीं होगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसाद परम शांतिम स्थानम परिपस्ते शाश्वतम। सब प्रकार से भगवान के शरणागत हो जाओ, ऐसे होने से तुम परा शांति एवं परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। अगर भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो शांति भी हो जाएगी और भगवत का धाम भी मिलेगा। जब तक अपने प्रयास करते रहेंगे कि मैं करता हूं, मुझसे होगा, मैं करूंगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। द्रौपदी ने जितना प्रयास किया, धृतराष्ट्र पितामह बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, हे गदाधारी भीम आपके पास 70,000 हाथियों का बल है, मुझे बचाओ। हे धनुर्धारी अर्जुन आपके पास पाशुपात गांडी वस्त्र कैसे कैसे अस्त्र है, आप तो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकते हो, आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो। हे धर्मराज आप धर्मराज युधिष्ठिर है, हे विदुर आप स्वयं धर्मराज है, नकुल सहदेव पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य, कोई तो मुझे बचाओ, यहाँ वहां सब जगह भटक रही है। पर भगवान की शरणागति, मेरे अपने हाथों से अपनी रक्षा करूंगी, दुशासन साड़ी खींच रहा है, मैं अपने दांतों से अपनी साड़ी को बचाऊंगी, मेरे में शक्ति है, मैं बचा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और दुशासन में भी 1000 हाथियों का बल है, कोई कम नहीं। 1000 हाथियों का बल कोई कम होता है। और जब हाथ खड़े किए, हे गोविंद लाखों लाज हमारी, शरणागति इमीडिएटली गोविंद टुक एवरीथिंग ऑन हिज हेड। द्रौपदी को जब दुर्वासा ऋषि आए, अब क्या करूं गोविंद गोविंद हे सखे कहाँ हो, गोविंद प्रकट होकर के आधा अन्न का दाना खाया और दुर्वासा के 1000 ऋषियों का पेट भर गया। व्हाट इज दिस? फुल फेथ इन कृष्ण। कृष्ण के साथ सभी सखा अगासुर देख रहे हैं। अगासुर इतना बड़ा असुर है, उसका मुंह का जबड़ा आकाश को छू रहा है, जीभ निकाली है, लगता मखमल का पैमान, मखमल का पर ये बिछाया गया है वेलवेट मैट, पर बदबू आ रही, दिख रहा सांप है, दांत दिख रहे, कुछ तो है, बड़ा बड़ा कंदराए हैं, ये बड़ा सा पहाड़ यहाँ था नहीं, कहां से आया। अरे पर हमको क्या चिंता है, भगवान है ना, कृष्ण है ना, चलो घुसते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अरे राक्षस होगा, बहुत सारे राक्षस वृंदावन पे आक्रमण कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं, तो करने दो, कन्हैया है ना। कृष्ण तो, राक्षस ने हमला किया, कृष्ण ने तो मार भी दिया, भगवान ने उनको बचाया भी तो सही, क्या चिंता है, चलो देखते हैं अंदर क्या है। दिस इज विश्वास, दिस इज दृढ़ विश्वास। इसलिए कहा गया है श्रद्धा एवं शरणागति एक ही तात्पर्य है जीव गोस्वामी के अनुसार। इसलिए शास्त्र में दृढ़ विश्वास अर्थात शरणागति, भगवान में शरणागति अर्थात भगवत भक्ति के साधनों को अपनाना। श्रद्धा एवं श्रद्धालु व्यक्ति का क्या लक्षण है, अब श्रद्धालु व्यक्ति का क्या लक्षण है, ये हम मे बी इन द वीकडे व्हेन वी गेट टाइम विल ट्राई टू कवर। कैसे भी कोई भी बोलेगा मुझे श्रद्धा है, तो केवल बोलने मात्र से क्या श्रद्धा हो गई? क्या वो सही में उसकी श्रद्धा है, या वो रजोगुण के प्रभाव में आकर के ऐसा बोल रहा है? श्रद्धा इज रियल और इज इट बिकॉज
आप शो, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू शो समथिंग, रजोगुनी श्रद्धा हो गई। आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव सम कंपैशन। अब कई लोग कथा, कई लोग कीर्तन, कई लोग भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, बट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, टू गेट सम मनी। हमको संसार में कोई धन मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए, इसलिए उनकी श्रद्धा है। कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा ठीक है जी, मुझे दान संसार तो कुछ नहीं है, बट लोग मुझे बोले हाँ कितना जानती है, कितना जानता है ये व्यक्ति, हाँ बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान है इसको। देयर इज समथिंग इन द हार्ट, सम डिजायर इज देयर। दिस इज रजोगुण। रजोगुण मीन्स व्हाट, यू वांट सम रिजल्ट। रजोगुण से क्या अर्थ है? रजोगुण का अर्थ है कुछ रिजल्ट चाहिए। तमोगुण से क्या अर्थ है? तमोगुण मतलब यू वांट टू डू समथिंग बैड। सतोगुण में थोड़ा शांति है, पर मोस्टली क्या ये रजोगुण है या क्या सच्ची में श्रद्धा है? हाउ विल वी एनालाइज, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट एट लीस्ट एट हाई लेवल वी हैव टू सी आवरसेल्व्स। मेरी जो भक्ति है ये किसी सांसारिक लोभ के लिए है, मान प्रतिष्ठा के लिए है। कई बार आप देखेंगे कुछ लोग, बोलना नहीं चाहिए, किसी का नाम भी नहीं बोलना मैं, बट जनरली वैद्यनाथ महाराज आते हैं, कभी कभार जब थे बहुत लोग आते हैं, महाराज महाराज आप कहाँ थे, आपकी बड़ी चिंता हो रही थी, आप कहाँ थे। अब महाराज यहाँ नहीं है, कथा कभी बार देते हैं ऑनलाइन भी, डिस्कॉर्ड पे भी, उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। सामने आएंगे तो जैसे तो आपके बगैर मर ही रहे थे, ऐसा होता है। या कोई किसी व्यक्ति के पास, भाई व्हाई इज इट शो टू सी आई एम ए डिवोटी एंड आई, और इज इट रियली श्रद्धा टुवर्ड्स इन दैट वैष्णवा। जैसे मुझे महाराज पिछले कुछ हफ्ते पहले बता रहे थे, कोई व्यक्ति मुझे बहुत मतलब कोई प्रभु जी बार बार पूछ रहे, अरे महाराज कब आएंगे, आप कहाँ हैं, कब चिंता हो रही है, आप किधर है, आपके बगैर मठ सुना सुना सा लग रहा है। बोले आई नो व्हेन आई वाज देयर आई कुक समथिंग, आई कैन नॉट ईट व्हाट दे कुक, और आई डोंट लाइक व्हाट दे कुक समटाइम्स। मठ में 2-2 बार खाना कैसे बन सकता है? नाउ महाराज where are you? If there is some pain, there is some issue, then you look for me. So where is real Shraddha? Maharaj saying this is duplicity. If you love somebody, you show it. If you don't love it, you don't show it. Why you have to do duplicity? With Vaishnava, duplicity, व्यवहार is with संसारिक व्यक्ति, not with Vaishnava. वैष्णव के साथ respect, श्रद्धा, प्रेम, संसार से व्यवहार करो। इसलिए क्या ये श्रद्धा सही में शास्त्र श्रद्धा है और साधु श्रद्धा है, या ये रजोगुण का उत्पन्न एक लक्षण? ये रजोगुण है या श्रद्धा है? That we have to see why I am doing it, for what purpose I am doing it. I am doing it for some getting material benefits, is रजोगुण. I am doing it for name, fame. मंदिर में बहुत लोग, हम भी कई बार, आप भी देखे होंगे, कोई भक्त लोग देते हैं, जब सेवा करनी है कब, जब सब देख रहे हैं, कीर्तन कब गाना है ठाकुर जी के सामने बैठ के, हाँ सब देख रहे हैं, बढ़िया अच्छा कीर्तन गा रहे हैं, अच्छा कथा चल रही है, और सेवा हाँ सब देख रहे हैं। और जब कोई नहीं हो, कोई कौन देखता, छोड़ो परे, चलो निकलो किसको। सो इट इज फॉर मी टू एनालाइज, इट इज नॉट फॉर एनीवन हियर, आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल। आप सब भक्त तो सेवा सब करते हैं, बट इन जनरल आई एम सेइंग व्हाई आई एम डूइंग सेवा, फॉर माय ओन बेनिफिट, फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड, प्लेजर ऑफ गोविंद, प्लेजर ऑफ माय गुरु, प्लेजर ऑफ राधा रानी महाप्रभु, or for my name pratishtha, man pratishtha. Not only in temple, outside also, anywhere. When you give hari katha, when you talk to somebody, आप हरि कथा दे रहे हो, आपके पास कथा सुन रहे हैं, what is the objective of your हरि कथा? Name and fame, or collect some money? मैंने बताया ना, हमने बहुत सारे ऐसे कथाकारों के साथ उठे, थोड़ा बैठे भी है, साधुओं को छोड़ करके, जिनका लक्ष्य रहता है कि कैसे करोड़ बन जाए, 5 करोड़ बन जाए और मान प्रतिष्ठा हो जाए, दैट इज इट। साधन भजन के मार्ग में जीरो। इसलिए श्रद्धा तभी कहलाएगी, श्रद्धा तभी परिपक्व कहलाएगी जब जीव साधन भजन के अंग को पालन करेगा। So this is the basic definition of श्रद्धा. We have few more points to discuss in this, and then we will move to साधु संग। तो कोई प्रश्न आज इस श्रद्धा के ऊपर? इसमें भी थोड़े से बाइफर्केशंस है, स्वाभाविक श्रद्धा, शास्त्रिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा। maybe one session more will cover Shraddha, and then we can move to Sadhu Sangha. Maybe half a session more for Shraddha we can cover. Gode Kanthar, क्योंकि महाराज जी सुबह पढ़ा रहे हैं, इसलिए I thought anyway we are reading it in the morning, so let us focus on Madhuri Kadambani and probably Updesh Amrit also. तो किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई विचार इसके ऊपर?
No questions. If no questions, then next time when we meet, I will only ask questions. I will not discuss anything. Only questions. Next session will be only questions. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट क्लास में, पापम और पाप पापम और पाप, जैसे हमने 4 प्रकार के पाप पढ़े हैं, प्रारब्ध, नहीं जब हम बोल रहे हैं पापम या हम बोल रहे हैं पाप, तो वो सेम है ना? पाप एक ही है। प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, पाप और सुकृति, पाप और दुष्कृति ये अलग है। पुण्य, पाप, सुकृति, दुष्कृति। पापम इज ऑलवेज पाप। पापम शब्द कभी बार हो सकता है मेरे मुंह से निकला, बट पापम मींस पाप ओनली। देयर इज नथिंग सेपरेट इन पापम। पाप के 4 प्रकार है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, वो तो हमने डिस्कस किया। और दुष्कृति अलग चीज है, सुकृति अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। सुकृति इज रिलेटेड टू भक्ति एक्टिविटीज, दुष्कृति इज रिलेटेड टू what is going to hinder in the process of bhakti. पाप is related to bodily pain and pleasure. पाप के कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है। ये पंच भौतिक शरीर और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट धातु से जो ये प्रकृति हमारी है, या भगवान की प्रकृति, हमारी तो नहीं है, प्रकृति भगवान की है, जो ये प्रकृति है, इनको असर करता है पाप। मन को असर करेगा, बुद्धि को असर करेगा, शरीर को असर करेगा पाप। भक्ति से कोई लेना देना नहीं। भक्ति का कौन ऑब्स्टैकल है? उसके लिए ऑब्स्टैकल है, आगे आगे हम सुनेंगे। दुष्कृति युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ, अपराध युक्त अनर्थ, अनर्थ उनको प्रॉब्लम करते हैं। जो अनर्थ अलग वस्तु है, पाप अलग वस्तु है, दो अलग वस्तुएं हैं। पापम एंड पाप इज वन एंड द सेम, पर अनर्थ इज ए separate subject matter. We'll cover it in the next Vrishti, third shower of this Granth. मुझे वही टर्मिनोलॉजी में डाउट था कि वो सेम है या अलग अलग है। पाप एंड पापम इज वन एंड सेम थिंग, बट पाप और जो मैंने बताया अनर्थ, ये अलग है। अगर अनर्थ से आपको लग रहा है सेम, अनर्थ अलग चीज है। अनर्थ भक्ति मार्ग में बाधक है, पाप शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान करते हैं। ठीक, और कोई प्रश्न? प्रभु जी कौन से मतलब पाप ज्यादा ये सख्त है क्या अनर्थ? नहीं, पाप से तो हमारा शरीर का कष्ट है, अनर्थ हमको भक्ति में बाधक है, इसलिए अनर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमको निकालना। पर क्या होता है कभी कभार पाप के कारण हमारा, क्योंकि हम कंडीशन सोल है ना, हमारी भक्ति कंडीशंस पे डिपेंड है। अब अगर कष्ट शरीर में अधिक आ गया तो हम भक्ति डिसाइड कर देते हैं। तो उस जब ये पाप हमको भक्ति से दूर करने लगता है, तब इस पाप को बोलेंगे दुष्कृति युक्त अनर्थ। ये दुष्कृति युक्त अनर्थ क्या आगे हम कवर करेंगे, बट आवर फोकस जनरली शुड बी टू गेट रिड ऑफ अनर्थ। क्योंकि पाप से अगर शरीर को कष्ट भी मिलेगा कोई बात नहीं, शरीर तो कष्ट मिलना ही है। पापों से मुक्ति पाने का आवश्यक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापों से मुक्त तो साधन भक्ति ही कर देती है। साधन भक्ति तो अनर्थ को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, कूट को खत्म कर देती है। बीज, जो पाप बीज अभी है, जो ऑलरेडी रिजल्ट देने वाले हैं, उनको भी नष्ट कर देती है। पर जो वासनाएं, जो डिजायर हम क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा सा लेट होते हैं, क्योंकि वो जो मूर्छित कषाय की स्टेज है, वो वासनाएं, वो डिजायर, जैसे मैंने बताया था ना, वो चूहा मर गया, चूहा तो बाहर फेंक दिया, मगर उसकी बदबू भी थोड़ी सी रहती है, वो डिजायर हृदय में फिर भी घूमते रहते हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए ये तब वो अगर दुष्कृति युक्त अनर्थ बन गया तो भक्ति में बाधक हो गया। अगर पाप शरीर को कष्ट दे रहा है पर मेरे भजन में कोई इंपैक्ट नहीं है, देन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भजन में इंपैक्ट करने लग गया तो अनर्थ का फॉर्म में आ गया, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। पर जनरली हमको पाप भी अवॉइड करना है, अनर्थ भी अवॉइड करना है, पर हमको ज्यादा फोकस अनर्थों को निकालने में लगाना है, और पाप तो करना ही नहीं है, क्योंकि साधन भक्ति के स्टेज में पाप तो वैसे ही नाश हो जाएंगे। पर अनर्थों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन दिस लाइफ टाइम टू रिमूव अनर्थ। वो खुद ब खुद नहीं होने वाले हैं। साधन भक्ति से वो भी जाएंगे, भजन क्रिया से वो भी जाएंगे, मगर दैट प्रोसेस ऑफ भजन क्रिया हैज टू स्टार्ट फॉर दैट, है ना। पाप भी नहीं करना है, अनर्थ भी नहीं करना है, दिमाग में ये रखना है। मुझे कुछ भी पाप नहीं चाहिए, मुझे कोई अनर्थ नहीं चाहिए, मुझे भगवत भजन करना, मेरा हर कार्य भगवान के लिए है, भगवान श्री हरि गुरुदेव वैष्णव के लिए है। मैं आज से अभी से जो भी कार्य करूंगा, जो भी कार्य कर रही हूँ, कुकिंग से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, व्हाटएवर आई एम डूइंग, इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ गोविंद। एंड दैट वी हैव टू टीच आवर माइंड, नॉट एक्सटर्नली एनीवन, ओनली अपने हृदय को। ठीक है दीप्तोषी दीदी, या योर क्वेश्चन।
प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि महाप्रभु वो आश्रय विग्रह है या विषय विग्रह है? मतलब उनको हम एज ए गुरु उनकी पूजा करें या राधा कृष्ण मिलित तनु? और सेकंड क्वेश्चन है कि उनको हम हरिचंदन दे सकते हैं क्या? हरिचंदन से मतलब तुलसी हाँ दे समझ। सकते हैं क्या उनको? महाप्रभु आश्रय विग्रह है, विषय विग्रह नहीं है। महाप्रभु के साथ हमेशा दास्य भाव में भजन होगा, हम उनके दास्य भाव में सेवा करेंगे, और वो आश्रय विग्रह है। ऑल्दो भगवत धाम में हम महाप्रभु के साथ उनकी सेवा जब करेंगे तब भी हम दास्य रस में ही उनकी सेवा करेंगे। इसलिए हमेशा महाप्रभु को हम भगवत स्वरूप में ही उनका पूजन करेंगे, भगवत बुद्धि में रख के ही उनकी पूजन करेंगे। और दूसरा हरिचंदन दे सकते हैं क्योंकि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, पर मूर मुकुट नहीं दे सकते। तुलसी चंदन उनको दे सकते हैं तो भगवान। इवन अगर गुरुदेव को भी तुलसी चंदन देते हैं, पर चरणों में नहीं देते, हाथ में देते हैं। और स्वयं भगवान को चरणों में दे सकते हैं हरिचंदन, गुरु वैष्णवों को हाथ में देते हैं हरिचंदन। तो ऐसा विधि है, गुरु वैष्णवों को हाथ में और ठाकुर जी को चरणों में। हम अगर आप कभी देखे होंगे, इवन इन गौड़िया, इवन इन चैतन्य मठ, ऐसा फर्स्ट टाइम देन आई कॉल्ड राधेश प्रभु ओनली, आई आस्क्ड हिम। मैंने देखा एकादशी को उन्होंने अन्न का भोग लगाया। मैं बोला ये अन्न का भोग क्यों लगा रहे हो? तो प्रभुपाद जी है, भक्तिदान प्रभुपाद जी है। बोले वो बोले नहीं लगाना। फिर उन्होंने भी शायद पद्मनाभ महाराज से चेक करके बोला नहीं, even you can offer even guru also on ekadashi also, but if you don't offer, it is also okay. So Gaur Nitai even can take it because they are supreme personality, but generally in Golok Vrindavan Dham they don't follow even ekadashi, but because there is supreme personality of Godhead. So what was the question? So yeah, so we can offer them Harichandan or even other ingredients as Supreme Lord, but our main objective is to offer them as a Supreme Personality of Godhead only. और दूसरा, अगर हम उनको भक्त रूप में भी पूजन आदि करते हैं, उनको एकादशी प्रसाद आदि ग्रहण कराते हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है. That is also valid and that is also good. That way also we can do. So both way is also okay. So they are, he is Supreme. हाँ दीदी, और कुछ? हाँ प्रभु जी, हाँ अगर वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है तो वो आश्रय विग्रह होंगे या विषय विग्रह? ब्रजेंद्र नंदन है, but his mood is not Bhagwan Sri Krishna. Although he is personality is Supreme Krishna, but the mood, we should not disturb in his mood. That is our whole. See, bhakti is what? Bhakti is अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम. अनुकूल और अनुशीलनम. श्रद्धा शब्द में हमने कहा we should have first faith. तो उनके अनुकूल जो है वो सचिनंदन गौर हरि गोलोक वृंदावन धामी श्वेतेश्वर दीप में भी उसी मूड में है. There he is not Supreme Personality showing Sudarshan Chakra and asking people to do my seva. There also he is relishing the moods of Srimati Radharani, Swarup Damodar, Rai Raman is chanting Jaidev Goswami's bhajan or Chandidas bhajan or giving him pleasure and he is enjoying. But there is Vishnu Priya, Lakshmi Priya, Sachi Mata in his household as a grahastha. That is the real form of Mahaprabhu in Golok, in Shveteshwar Deep. But the mood is to as a devotee. So not to disturb that mood up is what we have to follow. बट पर्सनालिटी तो भगवान है ही, बट उनके मूड को संस्पे करना हमारा लक्ष्य है. इसलिए अनुकूल अनुशीलन शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं डोंट ऑफर मोर पंख, इट डिस्टर्ब्स हिज मूड. इज ब्रजेंद्र नंदन, व्हाट इज द प्रॉब्लम गिविंग मोर पंख? वो तो भगवान है ना. पर नहीं, हमारा भक्त का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, ना कि उसके मूड को डिस्टर्ब करना. इसलिए रूप स्वरूप दामोदर ही क्यों जाते हैं उनसे मिलने के लिए. परसों सुकंदर को बता रहा था ना, व्हेन one devotee came with, बता रहे कोई बता रहे थे, when one devotee came with some letter, he said I want to, मैं महाप्रभु के सामने इसको गाना चाहता हूँ. कौन बता रहा था वो कथा? anyone remember here? इसी सेशन में महाराज जी मुनि महाराज ना, मुनि महाराज बोल. हाँ मुनि महाराज. So what did Mahaprabhu Swarup Damodar said? He said no, don't show this. This is not what Mahaprabhu's mood is. महाप्रभु का मूड नहीं है. So our goal is to satisfy Mahaprabhu's mood. इसलिए स्वरूप दामोदर जानते हैं क्या उनको पसंद है, क्या उनको बोलना है. राय रमन प्रभु जानते हैं क्या उनको पसंद है, क्या उनको बोलना है. तो जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं उसी प्रकार से हम सेवा करेंगे. वो आश्रय रूप में उनकी सेवा करते हैं, हम भी आश्रय भगवान के रूप में ही उनको सेवा करेंगे और उसी मूड में हम उनका संतुष्ट भी करेंगे. भक्त भगवान, बट इंटरनली दे आल्सो नो ही इज भगवान, वी आल्सो नो ही इज भगवान, बट टू सेटिस्फाई हिम इन हिज मूड, जो उनका मूड है उसी में हमको करना है उनकी सेवा. ठीक है दीदी, धन्यवाद. हाँ यस धन्यवाद. और कोई प्रश्न किसी का? लास्ट देवश्री दीदी, गो अहेड.
हाँ, प्रभु जी क्वेश्चन नहीं, एक शेयर करना चाहते हो, एक कमेंट है। प्रभु जी, हमने जैसे अभी माधुर्य कादम्बरी में हम पढ़ रहे थे कि कैसे भक्त जब मतलब भक्त प्रेमावस्था में जाते हैं तो उनका पूरा शरीर वो चिन्मय हो जाता है, जैसे हम उस दिन पढ़ रहे थे। तो अभी रिसेंटली मैंने दंडी महाराज का भी एक लेक्चर सुन रही थी मैं, तो वहां पे वो बोल रहे थे कि जब श्रील गुरुदेव ने जब उन्होंने अपना देह छोड़ा, तो उसके बाद जब उनको पता चला, क्योंकि मतलब जगन्नाथ धाम से वो नवद्वीप में भी लाया गया और ये सब कुछ, तो बाय द टाइम ही रीच्ड वहां पे कैसे भी करके 36 आवर्स हो चुके थे। फिर वो बोले कि 36 आवर्स के बाद भी जब मैंने गुरुदेव को देखा और उनके मतलब ऐसे चरण स्पर्श किए, तो बोले कि इट्स नॉट पॉसिबल। 36 आवर्स के बाद जो वो बॉडी मतलब जो उनका स्थूल देह था वो वैसा रहना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बोले कि क्योंकि मैं मेडिकल साइंस जानता हूँ इसीलिए मुझे पता है दैट बॉडी कैन नॉट स्टे लाइक दैट। तो बोले कि चिन्मय देह है, श्री गुरुदेव का चिन्मय देह है, इसीलिए वो देह मतलब पूरा ऐसा मतलब जैसे फ्रेश, इट वाज टोटली लाइक दैट। और फिर बोल रहे थे कि जब वो विदेश में भी यात्रा करते थे, तो जैसे हम जाएंगे विदेश में अगर 22 घंटे 26 घंटे जितना भी हो, तो उस जगह में जाने के बाद वो टाइम जोन के साथ हमारा पूरा वो करना, जेट लैग ये वो हमारा वो सब कुछ रहता है। तो बोले कि गुरुदेव मतलब उनका ऐसा कुछ नहीं, वो जाते थे फ्लाइट में पूरा नाम जप करते हुए उन, और जाने के बाद तुरंत वो वही वैसे ही फ्रेश जैसे वहां पे कोई जो है वो जैसे रहते थे। तो वो ऐसे बोल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और हम जो अभी पाठ भी कर रहे थे इसके साथ पूरा मिल गया, तो मैंने सोचा शेयर बिल्कुल कर सही, सकते। वेरी ट्रू। मुझे भी पूर्ण याद है, हम भी गुरुदेव का पुरी से लेके आए जगन्नाथ मायापुर तक, हम लोग भी उसी दिन निकले थे सब लोग। तो मुझे भी याद है गुरुदेव के चरण जब छुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मक्खन के डेले को छू रहा है, जो सब लोगों ने स्टिफनेस आती है। और गुरुदेव का मुखारविंद आप देखेंगे, गुरुदेव हंस रहे हैं। और जब तक गुरुदेव को समाधि में हम लोगों ने विराजित किया, ऐसे लग रहा है गुरुदेव अभी भी खड़े होकर के बात करेंगे, अभी भी खड़े होकर के बात करेंगे। कुछ भी नहीं। मेडिकल साइंस वाले तो दे विल हैव, उनके लिए तो अचंबा होगा। हम तो केवल गुरुदेव को गुरुदेव समझ के देख रहे थे। और मैं भी और पूरी रात उनके चरणों को भक्त लोग आकर के थोड़ा सा ऐसे हाथ, वी वर ऑल जस्ट ट्राइंग टू बी एज क्लोज लास्ट मोमेंट ऑफ गुरुदेव। अभी आखिरी दिन है गुरुदेव के साथ रहने के लिए। तो पूरी ऑलमोस्ट हाफ एन नाइट उनके चरणों को जब ऐसे हाथ लगा रहा था, so smooth, so soft, I can still feel। मैं अभी भी वो उनका दर्शन अपनी आंखों के सामने आ रहा, और किस प्रकार से there is no doubt इन महाभागवतों का शरीर जो है वो उनका इंद्रिया, उनका शरीर जो है वो चिन्मय हो जाता है, जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इसलिए हमको श्रद्धा नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हमको डाउट है। दैट इज व्हाट, श्रद्धा जब आएगी ना तो ये डाउट कभी नहीं रहेगा। शास्त्र जब बताया, शास्त्र में उनका शरीर, उनका इंद्रियां सब दिव्य हो जाती है, तो ये दिव्य होती है। हमको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा सा तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा, पर बाहर का शरीर कैसे दिव्य हो सकता है। उन्होंने देखा प्रभुपाद जी को, जिन्होंने देखा, स्पर्श किया, दे हैव दैट रियलाइजेशन। और शुद्ध भक्तों के साथ 100% ये विचार जो है ये 100% मेल खाता है। सो वेरी ट्रू, वेरी नाइस एक्सपीरियंस दीदी यू शेयर्ड, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ प्रभु जी। So any no more questions, then we will stop, because I have to go for some small seva also. I have taken already 10 minutes extra. So बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब भक्त जुड़े। अपनी श्रद्धा वो दृढ़ श्रद्धा में बनाइए, कोमल श्रद्धा जो भी है। भगवान ही हमारे एकमात्र हितैषी है। बार बार अपने मन को ये समझाना है, साधु गुरु शास्त्र। दृढ़ श्रद्धा मतलब इधर से उधर हो जाए दुनिया पर, मैं अपनी श्रद्धा को नहीं गवाऊंगा। गुरु साधु शास्त्र, there should be no doubt about it। एंड संस्कार, अपने संस्कारों को साधन भक्ति के मार्ग से दृढ़ करें, और बाहरी दृष्टिकोण से संसार में व्यवहार करें, और अंदर अपना साधन भजन परिपक्व करें। यही इसका लक्ष्य। हाँ बुला लो, मैं तैयार हूँ। आए थे नहीं आए, बुला लो। तो इन्हीं वचनों के साथ आज के इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सब भक्त लोग जुड़े, आदिकेशव प्रभु दंडवत प्रणाम। आपको बाद में देखा,
आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका वंडरफुल क्लास था। हरे कृष्णा, अरे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो ऐसे बोलते रहते हैं, गुरु वैष्णव को रिपीट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अमन प्रभु, नेहा दीदी, थैंक यू वेरी मच। अधिकेश्वर प्रभु, अवधेश प्रभु जी सब ठीक है? आज दर्शन नहीं हुए आपके? होप एवरीथिंग इज गुड। चंद्रकांता दीदी, दिव्यश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, प्रतिभा दीदी, प्रभु गोस्वामी प्रभु, सदाजित प्रभु, दंडवत सदाजित प्रभु। आशा करता हूँ सब दिल्ली में ठीक है, आप भी ठीक हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। नाइस। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु। और हरि की राधा हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। विशाल की जय, प्रभुपाद की जय, जय 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 गौर प्रेमानंद हरे हरि। हरे 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 कृष्ण, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत। प्रभु जी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद समर्थ बाबा, धन्यवाद। दंडवत।